that we want to hear, sir. So, uh, ladies and gentlemen, it is my honor to introduce you, Dr. Pradhan, a strategic leader and data scientist, and is an exceptional expert in predictive analytics. His handle in Twitter, if I am not wrong, was even also followed by our respected Prime Minister when he used to have this handle. His tweets, his predictions on Indian politics have come real. A warm welcome, Dr. Gaurav Pradhan. Let's hear from you, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much. Sir, we would like to start from your Twitter suspension, account suspension. So we would like to know that part story first, and then we'll go on in asking questions. Well, actually, Twitter, many people on Twitter were not happy with me, especially the IT cell, because I'm not somebody who sugarcoats my word. I say it bluntly and openly, because ultimately my loyalty is to the nation, not to any individual or a person. And I'm not a politician who has to click selfies with politicians, make them happy, and kind of things most of the people do. So I was frank, and it happened that last year when I came back from Srinagar, I promised people that I will write my story on Srinagar, my experience on Srinagar and everything like that. One of the feedback which I got from Srinagar from local people was against Ram Madhav and couple of other guys in his clan. Arif Bukhari, who runs a new political party in Kashmir. So Arif Bukhari relationship with Ram Madhav and Ram Madhav track record in Kashmir as well as in Northeast. And suddenly my Twitter account was taken off. And then I approached Twitter through one of my friend who is also a Kashmiri, and because there was a lady called Mahima Kaul in Twitter who was also Kashmiri, so I reached Mahima Kaul via my Kashmiri friend. And Mahima told me that if she gets a call from IT minister or his office, in 5 minutes my account would be restored. And unfortunately, I'm a kind of a person, you kill me, you shoot me a bullet, I will never ask a help from anyone. I will walk to the hospital if I can. Otherwise, I will give up my life. So naturally, that the DNA in me of not taking help and not doing chamchagiri costed me, and I never went to anyone to ask help and make that call and get my account update and restored. So it is gone, and it is gone for good thing. After that, they have also suspended 5 different accounts which I created. The last one was last year in December, on 6th of December, which was Office of DGP, which has close to about 70-80,000 followers. My original account was having about 300,000 followers. So anyway, it has gone good for it, because now I am fully on Telegram and Gab. So Telegram, it is difficult for these people to touch, and I have good number of people who listen to me, who do discussion and conversation, and on Telegram I post everything uncensored. So like on Facebook and Twitter, you cannot write against COVID, you cannot write against Wuhan, you cannot write against China, because the algorithm picks it up, blocks it, asks you to delete or misinformation or whatever they tag it with. And then you have those stupid fact checkers who come from anywhere and do a stupid fact checking. So Telegram is one of the best places because it is not censored. So I am on Telegram as DGP India. You can search Gaurav Pradhan, download Telegram app on your mobile, search Gaurav Pradhan or @DGP India, and you will get it. The other platform I am on is Gab. Gab is not in India, it is a US platform. It is NT Silicon Valley platform, so it is Philadelphia based. So it doesn't come under the cabal of big tech companies which are right now ruling the global platforms. And I can tell you, the Gab guy is my very good friend. The owner of Gab is a very good friend of mine. So nobody can delete my account from there, and it is a verified account.
So I'm on Gab and I'm on Telegram. That's what I don't do. Facebook and Twitter, I think I'm done with. Twitter, I'm exactly not there. Facebook, I'm there for some time. But right now it is again blocked for, I wrote something about COVID and Rahul Gandhi connection. So they have blocked me for 30 days. So I'm not too keen on that picture as well. So this is the story of Twitter and Facebook and social media. Okay, sir. I would just like all the audience to have patience. I will take each one of you, but we have some set of questions. Let me ask, and then I will take you guys. Sir, coming to our Indian politics, sir, do you think that these days our present government is doing a bit of appeasement politics? You know, I have encountered that question a lot of time about appeasement politics. Okay, first of all, let me ask you, do you want this conversation to be in English or in Hindi? सर Which is आप कुछ भी आपको जो भी कंफर्टेबल है आप बता सकते नहीं, I am fine in both the language. I'm just want to confirm so that nobody is left out with what I say. नहीं ठीक है सर, आप हिंदी में बोलिए बिकॉज भारतीय जनता बहुत जुड़े हैं तो Okay. मैं मैनेज कर लूंगी हिंदी में. Okay, see, okay, let me go by mix. I mean, I'm not Hindi or English, I go by mix. See, appeasement politics, I have encountered this question 100 times, and in fact, not 100 times, 1,000 times, that Modi do appeasement politics. And the counterpoint which people say, why appeasement politics? Because he is giving 5,000 crore or 10,000 crore to Muslims for madrasa, for work property, and for scholarship and all. There was a chart, there was a graph which came into my knowledge, which was shared by many people on Facebook and Twitter. And the graph shows that the Jains have, I mean, if you see the triangle graph, because I can't show anything on space, but if you understand graphs, अगर आपको ग्राफ पता है तो ग्राफ का एक पीक होता है छोटा सा, फिर एक दूसरा स्पाइक होता है, जैसे साइन वेव होती है, जैसे ईसीजी की वेव होती है, या जैसे आपने हॉस्पिटल में मॉनिटर्स में वेव देखी है चलते हुए. तो उसमें दिखाया गया था कि जैन का और जो बुद्धिस्ट का उनका वेव कम है और मुसलमान का सबसे ऊपर है. और लोगों ने बोला देखो मुसलमान सारी जो स्कॉलरशिप दी है माइनॉरिटीज को, मुसलमान हड़प रहे हैं. उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि 70 साल से भारत के मुसलमानों को कुछ मिला ही नहीं था एक्सेप्ट प्रोमिसेस एंड वोट बैंक, एंड प्रोमिसेस वर एक्सचेंज आउट ऑफ वोट बैंक. अब सवाल ये है, क्या ये अपीसमेंट है? ये अपीसमेंट नहीं है, क्योंकि अपीसमेंट वो होता है जहां आप कुछ देते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप हमें वोट करोगे. मोदी का उम्मीद कभी नहीं है किसी, मोदी तो छोड़ दीजिए, हम लोगों की भी उम्मीद नहीं है कि मुसलमान मोदी को वोट करेगा या भाजपा को वोट करेगा. ठीक है, 10%, 15%, हो सकता है 20% लोग वोट करें, हो सकता है महिलाएं वोट करें ट्रिपल तलाक की वजह से, लेकिन मूलतः in generic way Muslim doesn't vote for BJP, but understand now the real politics behind it. And I am asking a simple questions and I am trying to explain in a simple language. 2014 से पहले पहला क्वेश्चन, OIC, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस जो है OIC, उसमें कितने मुस्लिम राष्ट्र हैं? वो तो मुसलमानों के ही है, तो आंसर है उसका 56. दूसरा सवाल, 2014 से पहले OIC में कितने मुस्लिम नेशंस भारत के साथ थे? आंसर इज NONE, नन. भारत में मुसलमानों के खिलाफ कुछ होता था, OIC से एक लेटर आ जाता था, एक एडवाइजरी आ जाती थी या एक कंडेमनेशन आ जाती थी भारत सरकार के लिए. तो भारत को OIC की सपोर्ट बिल्कुल नहीं थी. OIC, most of the oil producing nations are also Muslim nations. मिडिल ईस्ट से ऑयल आता है, चाहे वो ईरान हो, चाहे सऊदी हो, चाहे यूएई, चाहे और जो छोटे मोटे देश हैं वहां से आता है. अगर आप सीरिया भी चले जाते हैं किसी तरह, तो वो भी एक तरह से मुसलमान राष्ट्र है. आपने 2014 में जब मुसलमानों को देखना शुरू करा, जब आपने मुसलमानों के लिए स्कीम निकाली, तो आपका उम्मीद मुसलमान का वोट नहीं था. आपकी उम्मीद और आपका मोटिव और आपका जो अप्रोच है वो इंडियन मुस्लिम के लिए नहीं थी, वो विदेशी मुस्लिम के लिए थी.
ताकि दुनिया को हम ये बता सकें कि भारत मुसलमानों के अगेंस्ट वाला नेशन नहीं है। भारत मुसलमानों की, जो भारत में 25-30% मुस्लिम पॉपुलेशन है, भारत उनके साथ खड़ा हुआ है। और देखिए, हम उनकी उन्नति करने के लिए उनको पैसे भी देते हैं, स्कॉलरशिप भी देते हैं, हम उनकी प्रॉपर्टीज को भी बोलते हैं, मदरसा को भी मॉडर्नाइज कर रहे हैं। तो आप जो मैसेज दे रहे थे, आप मैसेज भारतीय मुसलमानों को वोट के लिए नहीं दे रहे थे, आप वो मैसेज विदेशी मुसलमानों को भारत के मुसलमानों की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर और भारत सरकार का फेवरिज्म या सपोर्ट के लिए दे रहे थे। उस सपोर्ट का नतीजा क्या हुआ? वो एक ग्राउंड वर्क था। उस सपोर्ट के 3 नतीजे हुए। पहला नतीजा ये हुआ कि जब आपने पाकिस्तान की बजानी शुरू करी तो कोई मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। पूरे को पूरे 53 मुस्लिम नेशन, टर्की, मलेशिया और पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सारे मुस्लिम नेशन भारत के साथ आ गए। इसका जो बैरोमीटर है वो ये है कि जब यूएन परमानेंट टेम्परेरी मेंबरशिप चेयरमैनशिप की और 2 साल की जो मेंबरशिप होती है सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें वोट चाहिए थे शायद 130-140, लेकिन भारत को वोट मिले 184 या 186। यानी जो बाकी सारे वोट थे वो मुस्लिम राष्ट्रों के वोट थे। तो मुसलमान राष्ट्र जो दुनिया भर में है वो भारत के साथ हो गए। यहां पर आपने पाकिस्तान की बजाई, और याद रहे इन सब करने से पहले मोदी पाकिस्तान गए थे और नवाज शरीफ का हाथ पकड़ के घूमे थे। तो आपने एक दुनिया को मैसेज दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान का भला चाहते हैं। आपने दुनिया को एक मैसेज दिया था। डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं। दूसरा टारगेट यह था कि जब आप 370 हटाओ तो कोई भी मुसलमान नेशन छू ना करे, वरना आप सोच लीजिए अगर आप ये काम नहीं करते आपको मुसलमान नेशन जीने नहीं देते। आज पाकिस्तान डोजियर लेके सारे मुस्लिम नेशंस, यूएन, यूएस, लंदन, हर जगह घूमता फिरता रहता है, कोई घास भी नहीं डालता है। लंदन वालों ने तो बोला आओ भाई एक मैच देख लो, एक मैच करा देंगे इंग्लैंड के साथ और रास्ता नापो, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव आपने वो करा। तीसरा ऑब्जेक्टिव जब आपने ट्रिपल तलाक हटाया तो किसी मुस्लिम राष्ट्र ने आपके साथ चू नहीं करी। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपने राम मंदिर का डिसीजन दिया तो कोई दुनिया में एक आवाज नहीं उठी राम मंदिर के अगेंस्ट, इंक्लूडिंग मुस्लिम नेशन। उसकी शुरुआत आपने सबसे पहले कैसे करी? आपने यूएई में एक मंदिर बनाया। ठीक है, वो किस सोच का मंदिर है वो अलग चीज है, लेकिन मंदिर बना, वो सनातन धर्म का मंदिर बना। ठीक है, वहां पर उन्होंने इंडोर्स करा हिंदुइज्म को। आज सऊदी अरेबिया भगवत गीता, रामायण अपने करिकुलम में पढ़ा रहा है, योग को अडॉप्ट कर लिया है। वो योग जिसकी प्रीचर जो सऊदी अरेबिया की एक लेडी है जिसको पद्मश्री भी मिला था, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, एक समय था, मतलब मैंने उसकी जीप बनाई थी, फैब्रिकेट करवाई थी, तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसको अपनी जान बचाने के लिए दुनिया भर में भागना पड़ता था सऊदी से, और आज सऊदी अडॉप्ट कर रहा है आपके योग को अपने करिकुलम में, रामायण महाभारत को अपने करिकुलम में। तो आप ये बताइए कि अगर आप ये नहीं करते, इसको अपीसमेंट बोलेंगे या इसको वन ऑफ द फाइनेस्ट डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी बोलेंगे? मैं तो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी ही बोलूंगी। हाँ, तो ये अपीजमेंट नहीं है। मोदी ने कोई अपीजमेंट का अर्थ समझो। अपीजमेंट का अर्थ होता है जब हमने आपको कोई प्रॉमिस करा, कुछ दिया और उसके रिटर्न में हम कुछ चाहते हैं। हमें तो पता है आप हमें वोट नहीं दोगे, हमारा वो मोटिव तो है ही नहीं। हमारा मोटिव तो 370 हटाना था, राम मंदिर था, ट्रिपल तलाक था, और आने वाले टाइम में, मैं आपको टाइमलाइन नहीं दे रहा हूं, लेकिन आने वाले टाइम में जो हमारा इमीडिएट टारगेट है वो पीओके है। अगर मुस्लिम, और आप याद रखिए कि ओआईसी का फाउंडर मेंबर कौन है? ओआईसी का फाउंडर मेंबर पाकिस्तान है, और ये तीनों चीजें पाकिस्तान से रिलेटेड है। अगर पाकिस्तान शोर मचाता तो ओआईसी मना नहीं करती, मानती, लेकिन हमने पहले मुस्लिम राष्ट्र, जब हमने मुस्लिम राष्ट्रों को बता दिया कि भाई हमारे देश में मुसलमान जो है उसकी हम केयर करते हैं, भारतीय मुसलमान भारतीय हिंदू से अलग नहीं है, हम सर्वधर्म समभाव में, हम जहां हिंदुओं का उत्थान करेंगे वहां मुसलमान का भी उत्थान करेंगे, हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, एक ऊंचाई पे लेके आएंगे।
तो इसके बहुत फायदे होते हैं, ये केवल अपीजमेंट नहीं है, ये बहुत श्रूड स्ट्रेटेजी है, बहुत डिप्लोमेटिक भी है, एज वेल एज देश के अंदर के लिए भी एक स्ट्रेटेजी है। इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं। बिल्कुल। मेरे बाद न्यूयॉर्क मैम, आप अपना सवाल रखें प्लीज। गौरव सर नमस्ते, जय श्री राम। जय श्री राम मैम। वेलकम सर फॉर दिस प्लेटफॉर्म। एंड मेरा बहुत सीधा प्रश्न है आपसे, अगर आप दे सकें तो सही है, अदरवाइज आप पास भी कर सकते हैं। मेरा प्रश्न है आपसे कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? आप भी तो देश हित में वही काम कर रहे हैं जो और लोग कर रहे हैं। मैम ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे शायद मुझे पीएचडी करनी पड़ेगी, क्योंकि सब ये जानते हैं, जो मुझे बहुत पुराने टाइम से फॉलो करते थे ट्विटर पे 2013-12 से, वो सब जानते हैं कि मैं किसी पोस्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, नेतागिरी के लिए, इलेक्शन के टिकट के लिए, पॉलिटिशियंस के साथ फोटो खिंचाने के लिए कभी कुछ नहीं लिखता हूं। मैं अपने घर के कोने में बैठ के, अपने दफ्तर के कोने में बैठ के जब समय मिलता है अपने काम से, तो मैं ट्वीट लिखता था। मेरी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, मेरा एक पूरा नेटवर्क है इंटेलिजेंस का, जहां से मैं इंफॉर्मेशन आती थी उसको हम एनालाइज करते थे। उसका जैसे होता है ना, जैसे आप कंप्यूटर जब चलाते हैं तो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है 0-1, लेकिन आप लिखते हैं उसको पास्कल, सी और दुनिया भर की पाइथन वगैरह लैंग्वेज यूज करके, लेकिन जो आपको डिस्प्ले दिखता है वो एक क्लीन पिक्चर दिखती है, जिसकी वजह से आप कंप्यूटर यूज करते हैं। तो मेरे पास भी इंफॉर्मेशन जब आती थी वो एक ग्रीन स्क्रीन जैसी आती थी, जिसको हम एनालाइज करते थे लैंग्वेजेस में, हिस्टोरिकली आगे पीछे क्या हो रहा है अजम्पशन लेके। और उसके बाद तो प्रॉब्लम लोगों को ये थी कि ये आदमी इतना सही कैसे हो सकता है। अब इसके लिए मेरे पीछे मेरा 28-29 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रहा है, जहां हमने प्रॉब्लम डेफिनेशन ही सीखी है कि प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम डिफाइन कर लो तो सॉल्यूशन बना बनाया मिल जाता है, आपको परेशान नहीं होना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जब मैं लिखता था, लोग लिखते थे कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है, ये कॉन्स्पिरेसी लिखता है, जेम्स बॉन्ड है, बहुत सारे नाम दिए लोगों ने मुझे, फ्रॉड भी बोला, चीट भी बोला, डेरा प्रमुख भी बोला, भांड भी बोला, पता नहीं क्या क्या नाम बोले। मेरी वाइफ को प्रोस्टिट्यूट बोला, मेरे फादर को ब्रोथल रन करने वाला बोला, मेरी मदर को स्लट बोला। तो मैं इन सब चीजों से निकल चुका हूं। अंत में ये होता था कि जब मैं कुछ लिखता था वो 6 महीने में सही नहीं होता था, 1 साल में सही नहीं होता था, लेकिन 2 साल में सही हो जाता था। बहुत फ्यूचरिस्टिक लिखता था। तो जो लोग मजाक उड़ाते थे वो तो वापस नहीं आते, लेकिन और लोग साथ रहते थे। अब होता क्या है मैम, एक बार मेरे को एक गुरुजी ने एक आश्रम में एक कहानी सुनाई थी, मैं भी बड़ा परेशान था। ये इससे रिलेटेड नहीं है, कॉर्पोरेट लाइफ से रिलेटेड थी। तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि ये लोग जो मेरे पीछे पड़ जाते हैं उनसे मैं कैसे निपटूं कॉर्पोरेट लाइफ में। तो उन्होंने कहा, देखो गौरव, गांव में जब हाथी आता है तो गांव वाले हाथी के लिए केले लेके जाते हैं, शुगर केन लेके जाते हैं और बहुत सारी चीजें लेके जाते हैं, हाथी को प्रणाम करते हैं और हाथी को वो ऑफर करते हैं। हाथी भी अपनी सूंड उठा के उनको आशीर्वाद दे देता है। लेकिन उसके साथ साथ हाथी के पीछे 10-20 कुत्ते भी इकट्ठे हो जाते हैं गांव के, जो भौंकते रहते हैं। तो कुत्ते हाथी पे नहीं भौंकते हैं, कुत्ते एक्चुअली उन लोगों को पे भौंकते हैं जो हाथी के सामने उन प्यार से हाथी के सामने खड़े होते हैं, हाथी को प्रणाम करते हैं या हाथी को अपना ऑफरिंग्स दे रहे होते हैं। तो हाथी पे नहीं होते, उन लोगों पे परेशान होते हैं, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता कि हम तो यहीं रहते हैं, हमें तो कोई कुछ देता नहीं है, लेकिन ये हाथी कभी कभी आता है और इसको सब ऑफर करते हैं। तो बस यही कहानी है मैम, इसीलिए लोग मेरे से नाराज रहते हैं। जिनकी समझ में नहीं आता, जिनकी मैं समझ में आता हूं, जिनमें पेशेंस है, धैर्य है, वो मानते हैं कि अगर मैंने कुछ बात बोली है तो हो सकता है पूरी सही नहीं हो, आधी तो सही होगी या उसकी तरफ मूवमेंट तो होगा। तो जैसे एग्जाम्पल 2014 में 26 मई 2014 रात को 11 बजे शायद मैंने एक ट्वीट लिखा था कि महादेव ने भारत को ब्लेस करा है, आने वाले टाइम में, आने वाले 10 साल मोदी का फोकस फौजी और किसान होंगे, और राम मंदिर 370 जो है वो अगले चुनाव के बाद होंगी। बहुत मजाक बनाई मेरी, सबने, कुछ नहीं हुआ।
लेकिन जैसा मैंने बोला वैसे ही हुआ। मोदी का फोकस फार्मर और फौजी है। और दूसरी बात 370 और राम मंदिर 2019 के चुनाव के बाद आया। Sir, one more question if you don't mind. जी। Yeah. Everyone on Twitter, YouTube has some or other motive. Is this not true that for you too? Any political ambition, sir? मैम, मैं आपको ब्लैंक पेपर पे साइन करके दे सकता हूं, मैंने अपने जीवन में चुनाव नहीं लड़ा है। हाँ, मेरी राजनीतिक बैक रही है, इसमें मैं डिनाई नहीं करूंगा। मैं राजनीति में बहुत गहरा रह चुका हूं और गहराई का अंदाजा आप इससे लगा दीजिए कि वाजपेयी जी और अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, कल्याण सिंह, इन लोगों को मैंने चाय बना के अपने घर में पिलाई है एक साथ। ठीक है, अब वो घर किसका था, कहां मैं रहता था, वो सब बात करने का अभी मौका नहीं है, ना मैं करूंगा। लेकिन वो 1994 में मैंने करा था। उस समय मेरे को ये सही बात है कि वाजपेयी जी ने बोला था कि तुम जैसे यंग यूथ को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग करके निकला था, एमबीए कर चुका था, विदेश जा रहा था। तो उन्होंने कहा विदेश ना जाके भारतीय राजनीति में रहो। तो मैंने उनको, और वो मेरे को टिकट देने को तैयार थे, तो मैंने उनको बोला नहीं जी, मुझे तो बाहर जाना है क्योंकि मुझे सीखना है, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि 25 साल बाद मैं भारत में वापस आऊंगा और जो सीखा है वो देश को दूंगा। मेरी यही सच्ची कहानी है, इसमें कोई शुगर कोटिंग नहीं है, इसमें कोई कुछ मैंने मिलाया नहीं है, ये असली कहानी है। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि वो घर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के सामने जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है, उनमें फर्स्ट फ्लोर का घर था। ठीक है, इतना मैं आपको, बी ब्लॉक में फर्स्ट फ्लोर का घर था, इससे ज्यादा नहीं बता सकता किसका था, क्यों रहता था मैं वहां। बट ये सारी चीजें हैं जो सच्चाई है। पर मैं आपको ब्लैंक पेपर पे साइन करके दे सकता हूं। मैं एमपी एमएलए तो दूर की बात है, मैं नगर महापालिका, यहां तक कि अपनी आरडब्ल्यूए का भी चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल कर। Thank you, sir. Thank you so much, sir, Thank you, to ma'am. explain your views and everything. Thank you so Thank much. you, ma'am. Kar, please go next. Yeah. Okay, I will okay. take other speakers also. Please wait. I have 20 requests with me, so I will proceed after sir completes his session. Sir has promised to stay with us for a longer time, so please wait patiently. Okay, can I ask? Yeah. नमस्ते गौरव जी। नमस्ते। सर, जैसा कि अमेरिका में सत्ता बदल गई है और अभी रिसेंटली मतलब अफगानिस्तान से ये अपने सैनिक को इन्होंने विड्रॉ कर लिया, और एक तरफ हमारा जो है एक जो क्या बोलते हैं उसको, अभी जो ये ग्रुप का हुआ है ना हाल ही में, नहीं तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये सारी चीजें हो रही है भारत, हम अभी आप रिसेंटली बोले कि पीओके हमारा नेक्स्ट टारगेट है, तो आपको क्या लगता है इन सब चीजों की वजह से कितनी डिरेल हो सकती है, या इसका कोई असर ही नहीं पड़ेगा, या फिर देखो पीओके के जहां तक सवाल है, और बहुत पीओके ही नहीं, बहुत से और इश्यूज थे जो दुनिया भर के भारत के लिए, वो कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से 2 साल का डिले हुआ है सब में। ठीक है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी बदल गई थी बीच में। जब कोविड आया तो हमारी प्रायोरिटी देश को बचाना थी, ना कि पीओके की तरफ ध्यान देना या अफगान की तरफ ध्यान देना। लेकिन ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि हम सब कुछ बंद करके घर में बैठ गए, हम बहुत सारे काम कर रहे थे। पीओके हमें, मैंने जैसा हमेशा से बोला है, आज से नहीं बोल रहा हूं, पिछले 7-8 साल से, और यहां तक कि 10 साल से बोल रहा हूं, जब मोदी केवल चीफ मिनिस्टर थे, कि मोदी हमेशा अपनी लड़ाई बिना बुलेट के जीतता है। ठीक है, ही इज नॉट ए बुलेट फ्रेंडली पर्सन। वो कूटनीति और राजनीति में इतने माहिर हैं कि वो कोई भी लड़ाई बिना बंदूक के जीत सकते हैं। आप देख लो, कश्मीर ओवरनाइट बदल गया, कोई गोली नहीं चलाई, किसी को फौज नहीं भेजी। आपको लिख के दे रहा हूं, पीओके का भी रास्ता वो अफगानिस्तान से ही निकलेगा, और वहां पर हम, मेरे से बहुत लोगों ने अफगानिस्तान के बारे में पूछा, मैं रूल आउट कर देता हूं, मैं आंसर नहीं देता हूं, क्योंकि अभी आंसर देने का वक्त नहीं आया है, अभी एनालाइज करने का वक्त नहीं आया। बस मैं आपको इतना बता सकता हूं कि हम बहुत अंदर घुसे हुए हैं अफगानिस्तान में भी,
और हम आंख बंद करके नहीं बैठे हैं। आप मीडिया में जो आता है वो आप भूल जाइए। सच मानिए, मीडिया वालों को या टीवी डिबेट में आने वाले महारथियों को कुछ पता नहीं है, ठीक है। अभी बिल्कुल शांत रहिए, आप अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पे और एनएसए पे और मोदी पे विश्वास कीजिए। इन 3 लोगों पे बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ आगे होने वाला है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। Kumar, do you have any questions with you? No, ma'am, not at the moment. I'll just wait and listen for a while. Thank you. Okay. Okay, ma'am. Meenu ma'am? Yeah. 1 second. Yes, sir. One more question. I have a question. There are so many books on Modi ji. Which one you recommended to read, sir? मैम, मैं अगर ईमानदारी से इसका आंसर दूंगा तो बहुत सारे लोग मुझे मारेंगे, लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर आप मोदी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इस समय एक भी किताब ऐसी नहीं है जिसको मैं कह सकूं कि वर्थ इट है। क्योंकि जितनी भी किताबें आई हैं, देखो पिछले 5 साल में किताबों का एक भीड़ सी आई थी। जिसको देखो वो मोदी के लिए लिख रहा था। वो क्या लिख रहा था? वो मोदी के गुजरात में किए हुए काम लिख रहा था, वो मोदी की चुनाव में की हुई रैली लिख रहा था, वो मोदी के चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उनका काम है वो लिख रहा था, या ज्यादा से ज्यादा काम को एनालाइज कर रहा था। ये तो इंफॉर्मेशन हुई ना मैम। किताब आप 2 वजह से पढ़ते हो। किताब आप पढ़ते हो या तो इंफॉर्मेशन के लिए या नॉलेज के लिए। जब आप किसी व्यक्ति विशेष की किताब पढ़ते हो, जब आप गीता रामायण जैसी ग्रंथ पढ़ते हो, तो आप नॉलेज के लिए पढ़ते हो ताकि आप उनसे कुछ सीख सको। अभी वो किताब मोदी के बारे में आई नहीं है जहां आप मोदी की कूटनीति, राजनीति, काम करने का तरीका जो कि छिपा हुआ है अभी तक, वो किसी ने लिखा हो। अब सवाल यह है कि कब आएगी और कैसे पढ़ेंगे और कौन लाएगा। मुझे नहीं पता कौन लिखेगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मोदी का राजनीति से संन्यास लेने के 3 साल के बाद या 4 साल के बाद जब कोई किताब लिखेगा जिसके कम से कम 400 पन्ने होंगे, वो किताब पे पैसे खर्च करना। अभी किताब लेना बंद करो। अभी जो आप काम कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि शांत मन से बिना रिएक्टिव हुए मोदी के काम समझो, और समझने के बाद गीता, रामायण, छत्रपति शिवाजी महाराज और चाणक्य नीति और कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ के ये समझने की कोशिश करो कि रामायण में वो कौन सा अध्याय था जिसको आज मोदी जी कर रहे हैं या पालन कर रहे हैं, या कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से वो युद्ध हुआ और मोदी जी उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैंने एक बार उदाहरण दिया था, जब अर्नब गोस्वामी को जेल में डाला गया था, जो रिपब्लिक चैनल का ओनर है और एंकर है, तो मैंने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण को भी पता था कि अभिमन्यु पूर्ण रूप से तैयार नहीं है और अभिमन्यु का वक्त होगा। इसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि से बहुत दूर ले गए ताकि उनका समय से आना संभव नहीं हुआ। और उसका कारण यह था कि युद्ध में नियम को तोड़ना जरूरी था, क्योंकि जो नियम बने थे महाभारत काल कुरुक्षेत्र के युद्ध में, वो नियम ऐसे थे कि आप उनसे जीत ही नहीं सकते थे। आप युद्ध जीत ही नहीं सकते थे। कौरव पांडव दोनों ही लड़ते रह जाते सालों सालों तक, लेकिन युद्ध नहीं जीत सकते थे। तो नियमों का तोड़ना बहुत जरूरी था। जैसे कि जब अभिमन्यु को मारा तो अभिमन्यु के हाथ में हथियार नहीं था, अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं था, वो जमीन पे था। तो यही चीज याद दिलाई कृष्ण ने अर्जुन को। जब कर्ण का रथ धसा जमीन में, तब उन्होंने याद दिलाई क्या अभिमन्यु के वक्त कोई था। जब जयद्रथ का वध हुआ, तब उन्होंने याद दिलाई कि अपना धनुष बाण हमेशा लेके रथ से उतरो, बिना उसके कभी मत उतरो। तीसरी बात, जब दुर्योधन का वध हुआ तो कृष्ण ने कहा इसकी कमर से नीचे मारो, क्योंकि इसकी मां की दृष्टि की वजह से
इसका शरीर वज्र का हो गया, तुम नहीं हरा सकते, लेकिन कमर के नीचे यानी जहां पर अंडरवियर होता है, अगर वहां आप मारोगे तो दुर्योधन का वध होगा। और नियम के हिसाब से कमर के नीचे वार करना वर्जित होता है, तो नियम टूटे। तो जब अर्नब को भी जेल गया तो एक नियम टूटे कि आपने पत्रकारों को जो हम कहते हैं एक अनडिस्क्लोज इम्यूनिटी मिली हुई होती है जर्नलिस्ट को, वो इम्यूनिटी वहां पर टूटी और उसका यूज होगा आगे। तो हर चीज का, इसीलिए मैं कहता हूं कि गीता रामायण अगर पढ़ोगे तो जीवन की बहुत परेशानियां आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अभी वक्त नहीं आया है कि आप मोदी को पढ़ो, अभी वक्त आया है कि आप गीता रामायण चाणक्य और कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ो, तब आप मोदी को जो समझ पाओगे। देखो दो चीजें, एक होती है मोदी को जानना और एक है मोदी को समझना। जानने की गारंटी बहुत लोग करते हैं और सही करते हैं, ठीक है, टीवी मीडिया सब सही करते हैं, सोशल मीडिया वाले भी करते हैं, लेकिन मोदी को समझते कितने लोग हैं? वो तो बहुत कम पॉपुलेशन है। या शायद मेरे ख्याल से अगर मैं टीवी के हिसाब से बात करूं तो शायद 10-12 लोग होंगे या 5 लोग होंगे जिनको मैंने देखा है जो समझ पाते हैं, या ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए तो मेरे जैसे 2-4 या 10 लोग हैं, 20 लोग हैं शायद, या 50 लोग होंगे जो मोदी को समझने की। बाकी तो जितने भी ट्वीट्स आप देखते हैं ट्विटर पे या फेसबुक पोस्ट पे, वो मोस्टली रिएक्टिव होती है। हम शायद किसी के ट्वीट का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना एक फ्रेश ट्वीट बना के डाल रहे हैं जिसमें हम किसी ना किसी को ट्रोल कर रहे हैं। हम एनालिसिस कहां दे रहे हैं? और एनालिसिस देने के लिए आपको ग्राउंड पता होना चाहिए, आपको मोदी नाम की चीज पता होनी चाहिए वो क्या है। तो इसलिए वक्त लगता है मैम, इसलिए अभी किताबों में पैसे बर्बाद मत कीजिए, अपना समय खराब मत कीजिए, सब कचड़ा है। मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता, मेरी इतनी अथॉरिटी तो नहीं है कि मैं बोलूं कचड़ा है, सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। बट कुछ लोगों ने मोदी के नाम पे किताबें लिखी हैं, उनका काम केवल ये एक है, जो भी सोशल मीडिया लाइमलाइट में आया उसके पास जाके अपनी किताब लेके पहुंच जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और अपने ट्विटर पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे उसकी फोटो छाप लेते हैं और फिर वो उसके पीछे चिपक लेते हैं फेविकोल की तरह। और जिस दिन वो बंदा गलत साबित हो जाता है उस दिन ऐसे भागते हैं जैसे ऑस्ट्रिच रेत में मुंह छिपा लिया। तो अभी ये किताब मत पढ़िए, अभी ये सब फालतू का है, गार्बेज है और कुछ नहीं है। थैंक यू सर। आप 3 साल वेट कीजिए। थैंक यू सर फॉर दिस गाइडेंस, आई विल फॉलो दैट। थैंक यू। थैंक यू सर। सर आपने बीच में कहा कि आपके परिवार को गाली दिया गया, आपको अपशब्द बोले गए, तो मैं आई जस्ट वांटेड टू से दैट इट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल टू एंड्योर द सच काइंड ऑफ अबॉरेंट बिहेवियर। आप वो समय आप कैसे व्यतीत किए? स्ट्रेस तो सर, मेंटल स्ट्रेस तो आता ही होगा। मैम बड़ी सीधे सी चीजें हैं, मैं 2-3 चीजें करता हूँ। पहली चीज तो जब ऐसा रैंडम कहीं से ट्वीट दिख जाता है या फेसबुक पे, आज भी अभी भी देख लीजिए, आप सर्च कीजिए, आपको फ्रॉड तो मिल ही जाएगा। तो मैं बंद करता हूँ और सो जाता हूँ, या कोई किताब उठा के पढ़ने शुरू कर देता हूँ, खासतौर से गीता, रामायण, महाभारत या मैनेजमेंट की कोई किताब, या सब कुछ बंद करके केवल लिंक्डइन पे चला जाता हूँ, जहां मैं केवल मैनेजमेंट और प्रोफेशन से रिलेटेड लिखता हूँ, पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं लिखता। जब कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है, जैसे कि एक महिला है उस दिल्ली में, उसने दिल्ली गुड़गांव में उसने एक गैंग बना रखा है, ये लड़कों का गैंग है, ये कोऑर्डिनेटेड अटैक करता है। और ये केवल मुझ पे अटैक नहीं कर रहा था, इसने मीनाक्षी लेखी पे भी अटैक करा था, मेरा भी अटैक, मेरे ऊपर तो खैर FIR करी हुई है और मोलेस्टेशन की। तो ये जो कोऑर्डिनेटेड अटैक जब होते हैं तो मैं कुछ नहीं करता, मैं अपना लैपटॉप बंद करता हूं, अपनी जीप उठाता हूं और 2 दिन के लिए पहाड़ पे शांत चला जाता हूं, फोन वोन सब बंद करके ध्यान करता हूं, पहाड़ों में घूमता हूं, नदियों में नहाता हूं और फिर फ्रेश माइंड से वापस आके फिर शुरू हो जाता हूं। ठीक है। एडवोकेट रोहित धुरिया जी, आप अपना सवाल पूछें, मैं फिर स्पीकर्स को रोटेट करूंगी। मेरे पास 40 रिक्वेस्ट पड़े हैं, मैं रोटेट करती जाऊंगी। सर आई थिंक यू वुड अलाउ मी टू डू दैट सर, प्लीज।
please, ma'am, at your disposal. And I request all the speakers not to use any kind of language over here, and we should act as a sensible citizen. Thanks. Yeah. May I, ma'am? Yeah. Thank you, Gayatri ma'am. Thank you, Gaurav sir, for joining us. Yeah. सर मैं आपका और मेजर आर्या जी का बहुत बड़ा फैन था. आप काफी देर से गायब थे, मेरे को मेजर आर्या नहीं, मेजर आर्या नहीं, करेक्ट वे है गौरव आर्या. मेजर गौरव नहीं, मेजर गौरव आर्या नहीं, कैप्टन गौरव आर्या. अच्छा, कैप्टन गौरव आर्या जी का. तो सर आपको क्या लगता है, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज जो गवर्नमेंट के पास है ओपोजिशन की तरफ से, वो क्या है? और इकोनॉमी रिवाइवल के लिए व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज टू द गवर्नमेंट? देखो, गवर्नमेंट का चैलेंज अपोजिशन से नहीं है. गवर्नमेंट का चैलेंज मोदी के सपोर्टर्स से है, क्योंकि मोदी के सपोर्टर्स को ऐसा लगता है कि हर चीज ऑन ए ड्रॉप ऑफ ए हैट होगी, जो कि नहीं होता है. जैसे कि मैंने बताया, 2014 से काम शुरू हो गया था 370 पे, ट्रिपल तलाक पे और राम टेम्पल पे और पीओके पे. लेकिन 5 साल लग गए आपको राम टेम्पल के लिए, 370 के लिए, ट्रिपल तलाक के लिए और यूसीसी के लिए. यूसीसी भी आने वाला है, किसी भी टाइम आ सकता है. ठीक है, इस साल आए, अगले साल आए, या 2022 से पहले ही आ जाना चाहिए. तो उनके लिए काम करने का तरीका 5 साल रहा. अब प्रॉब्लम, चुनौती क्या है? मोदी की चुनौती अपोजिशन नहीं है. मोदी की चुनौती ये उतावले लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं. इन्हें ये लगता है, अब फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, किसी लोगों का धंधा चल नहीं रहा था, नेतागिरी चल नहीं रही थी, तो वो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पे आ गए. ठीक है, जो मेरे हिसाब से इट इज जस्ट अ पीस ऑफ गार्बेज, नथिंग एल्स. अब दूसरा सवाल आपका ये था इकोनॉमी रिवाइवल के लिए. तो देखो, इकोनॉमी रिवाइवल के लिए मैंने पहले भी लिखा था, और इसीलिए मैं बोलता हूं, अगर आपको मोदी जी को काम करने का समझना है, तो आपको 4 किताबें पढ़नी है. आपको रामायण समझनी है, आपको गीता समझनी है, आपको चाणक्य समझना है, और आपको कौटिल्य अर्थशास्त्र समझना है. अब मैं आपको यह बताता हूं क्यों. रामायण का संक्षिप्त, अगर एक लाइन में रामायण को, इफ यू डिस्क्राइब रामायण इन जस्ट 1 लाइन, यू नो व्हाट इट इज? इट इज अबाउट बिल्डिंग कैरेक्टर. रामचंद्र, युवराज रामचंद्र से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने का सफर को रामायण कहते हैं. यानी उसमें पूरी जो पूरी रामायण है वो कैरेक्टर बिल्डिंग पे है. अगर आप रावण को भी देख लीजिए, तो रावण राम से ज्यादा रईस था, राम से ज्यादा भक्त था, राम से ज्यादा पावरफुल था, राम से ज्यादा अच्छी सेना थी, राम से ज्यादा अच्छे अस्त्र थे, राम से ज्यादा अच्छा ब्लेस था शिव जी से या औरों से, ब्रह्मा से. उसने देवताओं को अपने राजमहल में कैद करके रखा हुआ था, कुबेर को कैद करके रखा हुआ था, यमराज को कैद करके रखा हुआ था. बिना रावण की परमिशन के उसमें किंगडम में कोई मर नहीं सकता था. लेकिन रावण में एक कमी थी, वो थी उसका कैरेक्टर. जब उसने माता सीता का हरण करा, तो उसने अपना कैरेक्टर खत्म कर दिया. और राम में और कुछ, रावण का मुकाबला कुछ नहीं था, लेकिन राम में एक चीज थी, वो थी उनका सॉलिड कैरेक्टर. तो जो रामायण है वो कैरेक्टर का व्याख्यान करता है. तो जब अपना कैरेक्टर सीखना है, इसीलिए युवाओं को बोलता हूं रामायण पढ़ो, कि आपका कैरेक्टर जो आप आज बनाओगे ना, उसके जो फल हैं, उसका जो बेनिफिट है, वो शायद आपको 50 साल के जब हो जाओगे तब मिलेगा. मेरे ऊपर आप मुझे कुछ भी गालियां दे दो, फ्रॉड बोल दो, चीट बोल दो, बदमाश बोल दो, ब्लैकमेलर बोल दो, जो मन में आए आप मेरे को बोलो, जो मन में आए. आपका प्रेरोगेटिव है, आप जो चाहे बोलिए. लेकिन क्या आप साबित कर सकते हो? आप एक चीज साबित नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं. जब हम महाभारत की बात करते हैं, रामायण के बाद आती है महाभारत, सीरियस से बता रहा हूं, तब आप बात कर रहे हैं कर्म की. आप बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति का कर्म प्रधान जो होता है, जो आपकी युवा अवस्था हो गई, या आपके कॉलेज से निकलने के बाद आपके
बच्चों की विवाह तक, ये आपका कर्म प्रधान जीवन है। तो आपको कर्म से कैसे जीना है, ठीक है। उसके बाद आती है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति आपको डेली लाइफ के वो नियम सिखाती है जिसमें आप राजनीति इस्तेमाल करते हो। अब ये मत कहना कि राजनीति केवल राजनीतिज्ञों के लिए होती है, जी नहीं। राजनीति आप कॉर्पोरेट लाइफ में भी यूज करते हो, आप पर्सनल लाइफ में भी यूज करते हो, आप दोस्तों के साथ। डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है राजनीति की, लेकिन आप राजनीति होती है। कौटिल्य अर्थशास्त्र इसलिए लास्ट में रखा गया है क्योंकि वो इकोनॉमिक्स है जो आप यानी कि आप परिवार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक राजा अपनी प्रजा के लिए इस्तेमाल करता है। अब जैसे मोदी जी की इकोनॉमिक्स का जो आपने सवाल पूछा, मोदी जब कोरोना आया तो सब जितने महारथी इकोनॉमिस्ट थे भारत के, ठीक है, नामी इकोनॉमिस्ट जो भारत के हैं, उन सब ने ये कहा कि हमें स्टिमुलस पैकेज निकालना चाहिए, मोदी को स्टिमुलस पैकेज देना चाहिए कुछ लाख करोड़ का इंडस्ट्री को। क्या होता उससे? स्टिमुलस पैकेज अगर हमने एक इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया, मान लीजिए अंबानी, टाटा, बिरला किसी को दिया, आधा पैसा उठा के वो कॉर्पोरेट में उसमें स्टॉक्स में डालता, आधा पैसा जेब में डालता, थोड़ा सा एक्सपेंशन करता। हमने क्या करा, मोदी ने क्या करा कि वो पैसा स्टिमुलस ना देके मोदी ने 20 लाख करोड़ का प्लान बनाया, और ये प्लान उसने दिया गरीबों को। तो गरीब हो गए, एमएसएमई हो गए, जो स्मॉल इंडस्ट्री हो गई, उनको दिया। जब गरीब के हाथ में पैसा है तो गरीब तो खर्च करेगा, जब गरीब ने पैसा खर्च करा तो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट बढ़ी, डिमांड बढ़ी। जब डिमांड बढ़ी तो सप्लाई बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री ने मिडिल क्लास को ज्यादा हायर करा। तो आप देखिए, आपने कैंप फायर में आग नीचे लगाई, पिरामिड में आग नीचे लगाई और आग ऊपर तक पहुंच गई। इससे इकोनॉमिक इंजन चालू होता है। तो जो रिवाइवल का तरीका है भारत का इकोनॉमिक इंजन का, वो यही चल सकता है और कोई नहीं चल सकता, क्योंकि भारत अमेरिकन सोसाइटी नहीं है जहां हर चीज, आप कैलिफोर्निया में बर्गर जो लोगे वही बर्गर आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा, लेकिन भारत में अगर आप जो बर्गर दिल्ली में खाओगे वो शायद आपको चेन्नई में नहीं मिलेगा। तो उसका वो बर्गर बदल जाता है। यही डेफिनेशन होती है कॉर्पोरेट्स में जब हम बात करते हैं ना, डेफिनेशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी वर्सेस ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी क्या किसे कहते हैं और मल्टीनेशनल क्या कहते हैं? तो मल्टीनेशनल मॉडल मोदी ने नहीं अपनाया, मोदी ने ग्लोबल मॉडल अपनाया, जहां पर उसने निचले तबके को एम्पावर करा ताकि उसकी डिमांड बढ़े। हमें मार्केट में डिमांड बनानी थी, सप्लाई तो हो जाएगी, हमें डिमांड बनानी थी, और उस डिमांड के चक्कर में इकोनॉमिक साइकिल मूव करने लगा। कोरोना के जैसे लॉकडाउन हटा, कंपनियां खुली, इकोनॉमिक साइकिल घूमने लगा, पहिया घूमने लगा। और आपने देखा होगा कि चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री हो, कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी हो, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं, उनका एकदम रिवाइवल हो गया और उन्होंने पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए सेल्स में। हाँ, कुछ इंडस्ट्री सफर हुई है, जैसे स्कूल सफर हुए, प्राइवेट स्कूल्स बहुत सफर करे, जैसे टूरिज्म बहुत सफर करा है, एयरलाइन ने सफर करा है। तो उनका रिवाइवल धीरे धीरे हो जाएगा, जैसे जैसे मार्केट खुलता जाएगा उनका रिवाइवल होता जाएगा। एम आई एबल टू आंसर यू? थैंक यू सर। सर एक सिर्फ छोटा सा सवाल था जाते जाते, ये प्रशांत किशोर कितना बड़ा चैलेंज है यार? मोदी यार शादी कर लो आप लोग प्रशांत किशोर से जाके, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? नहीं सर, वैसे मतलब देखा जाए, एक बंदा जो पिछले 50 साल से राजनीति कर रहा है, ठीक है, जिसने गुजरात जो कि दंगों में झुका हुआ राज्य होता था, जहां हर दिन दंगे होते थे, उसने पिछले 15 साल में दंगे नाम की चीज खत्म कर दी गुजरात से। उसने कांग्रेस को खत्म कर दिया गुजरात से। नेशनल पॉलिटिक्स में उसने कांग्रेस को नेस्ता नाबूद कर दिया है। आई मीन, यूपी में लोकसभा में 1 सीट आई कांग्रेस की। आपको लगता है प्रशांत किशोर उससे ज्यादा अच्छी राजनीति जानता है? सर 2014 में जब गवर्नमेंट आई थी तो शायद मोदी गवर्नमेंट के लिए प्रशांत किशोर ही वो था जो साथ में लेके आया था। ये गलत धारणा है। ये नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। ब्रांडिंग उन्होंने नहीं बेटा, बस अरे नहीं, चाय पे चर्चा
एक हमारे मित्र हैं गुजरात में, उन्होंने कॉइन करा था। ठीक है, मोदी की 2014 में एक टीम थी, 2014 के चुनाव के लिए एक टीम थी सोशल मीडिया की, जो 2009 में बनी थी। इसका एग्जैक्ट टाइमिंग तो मुझे नहीं पता, शायद समवेयर मिड 2009 में बनी थी। इसी कारण से अगर आपने ध्यान दिया हो तो मोदी का ट्विटर अकाउंट 2009 के शुरुआत का है, और जो मेरा ट्विटर अकाउंट बंद हुआ वो 2009 के सितंबर का है। एक व्यक्ति हुआ करते थे जो उस समय आईटी सेल को हेड करते थे, और मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, उनका नाम था अरविंद गुप्ता। अरविंद गुप्ता और मेरी दोस्ती अरविंद के राजनीति में आने से पहले और मेरे विदेश जाने से पहले की है, यानी हमारी दोस्ती कोई 95-96 की है। ठीक है, तो प्रशांत किशोर भी हमारी ही टीम का एक हिस्सा थे, एक टीम थे, कोई लीडर नहीं थे। जो लीड कर रहा था, जितनी टेक्नोलॉजी हमने यूज करी, इनोवेशन यूज करे, वो सारे दिमाग की उपज थी अरविंद गुप्ता की, जो कि आईआईटी बीएचयू के पढ़े हुए थे। दूसरे उनके और साथी थे, जिसमें प्रशांत भी था, ऐसा नहीं है वो नहीं था। और उसमें मैं अपना नाम यहां नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग था। जैसे क्या होता है कि हर आदमी काम करने के वक्त उसकी एक महत्वाकांक्षा होती है, और जब वो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है तो आप दूसरे पाले में जाना शुरू करते हो। अब आपको विश्वास तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि यूपी की एक पार्टी ने, जो प्रोमिनेंट यूपी की पार्टी है, उसने मुझे 2019 से पहले, ये बात है 2017 की शायद, मुझे 10 करोड़ का ऑफर दिया था कि मैं उनके साथ आऊं और उनका सोशल मीडिया संभालूं और उनको आगे लेके जाऊं, मतलब यूपी जिताऊं। लेकिन क्या है कि अब मेरी लॉयल्टी तो मोदी जी के साथ खड़ी है, क्योंकि मैं तो मोदी जी के साथ 2009 से हूं। ठीक है, तो मेरी लॉयल्टी तो तब से उनके साथ है। यही कारण है कि मेरे को मोदी तब से फॉलो कर रहे थे ट्विटर पे, जब लोगों को, आज के लोगों को तो ट्विटर पता भी नहीं था। मोदी, आपको विश्वास नहीं होगा, मोदी मुझे दिसंबर 2009 से फॉलो कर रहे हैं। तो जो ये हाइप बनाई है प्रशांत किशोर की, ये मीडिया ने बनाई है, और जो हमारे मित्र लोग हैं, जिनको सोशल मीडिया के उतावले मित्र लोग हैं, उन्होंने बनाई है। प्रशांत किशोर क्लासिक पॉलिटिक्स जानता है, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स जानता है, दलित की पॉलिटिक्स जानता है। वो दलित के नंबर गेम में, जहां ट्रायंगुलर या चार कोणों की लड़ाई होती है, वहां उसके नंबर गेम खेल सकता है। मैं ये नहीं कहता खेलता ही है, खेल सकता है। लेकिन जहां कॉन्टेक्स्ट 1-on-1 का होता है, वहां प्रशांत किशोर फेल हो जाता है। Okay. I'll go to Porus. Sorry, Rohit, I have to circulate because I've got No 50 worries, ma'am. requests. Thank you, ma'am. Thank you. If you get time, so later on you can. Sure. And sir has promised me to do a bit of series with him, so he would be coming to the space. Sir, आपको अभी 700 people सुन रहे हैं, so Okay. I thankful to the listeners. पोरस जी, आप अपना सवाल रखिए। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भैया। पहले तो सर आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, जो आपने महाभारत की और रामायण की जो आपने मतलब जिस तरह से डिस्कस किया, बहुत अच्छा लगा। मतलब ये नरेटिव भी सुनने में मैंने मतलब बहुत कम से सुना था। सर एक और कंग्रेचुलेशंस, आपकी वैक्सीन हो गई है, जैसे मैं अभी देख रहा था, तो उसके लिए कंग्रेचुलेशन। सर मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ पे जो चीजें चल रही हैं, आप बहुत ज्यादा इस पे ओपनली बोलते हैं, तो क्या आपके क्या विचार है जो अभी पंजाब की कंडीशन है? और जो फार्मर प्रोटेस्ट पे मैंने आपका एक वीडियो भी सुना था जो यूट्यूब पे था, तो आप कोशिश करते रहिए कि इंटरेक्ट होते रहिए, ताकि हमें आपकी गाइडेंस मिल सके। तो पंजाब के बारे में क्या आपका विचार है? देखो, पंजाब के बारे में मैंने लिखा ज्यादा नहीं है। मैंने फार्मर लॉ के बारे में बहुत लिखा था पिछले साल, ठीक है, और वो मेरे शायद फेसबुक पे पड़ा होगा। अगर वो
और वो मेरे ब्लॉग पे भी मैंने उसको ब्लॉग में डाल दिया था, तो आप वहां पढ़ लेना बेटा। लेकिन पंजाब अभी सर्कस है, ठीक है, अभी मजे लो, इससे ज्यादा कुछ मत करो। अभी पंजाब में मजे लो। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन की जुगलबंदी जो चल रही है उसको एंजॉय करो, ठीक है। रहा सवाल पंजाब के चुनाव का क्या होगा, अगर आपको ये उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी वहां जाके अपना चुनाव लड़ेगी और सरकार बना लेगी, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपने लेवल पे जनाधार अभी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का अभी वहां पर कोई ऐसा लीडर नहीं है जो पार्टी को आगे लेके जा सके, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का हाल तेलंगाना में, आंध्रा में और केरला में है। वेस्ट बंगाल की कोशिश करी गई थी, लेकिन जैसा हाल भारत का केरला, तेलंगाना, आंध्रा में है, वही हाल पंजाब में है, ठीक है। तो पंजाब में अभी वो जीतेगी नहीं, अभी कम से कम 2 इलेक्शन और लगेंगे। दूसरी बात ये, जो मोदी का सोच है, जो मुझे लगती है, मुझे किसी ने बताया तो नहीं है, मैं अपनी एनालिसिस के साथ, मोदी की सोच ये है कि मुझे पंजाब को रिवाइव करना है। पंजाब बहुत मानों में बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड ग्रेन जो हमारा प्रोडक्शन है पंजाब का, वो पंजाब का प्रोडक्शन पूरा पॉइजनस प्रोडक्शन है, तो हमें बहुत सारा खेती में काम करना है ताकि हम उसका जो जमीन के अंदर पॉइजन भर गया है पेस्टिसाइड्स को ज्यादा यूज करने से, वो खत्म हो। पंजाब में दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैंसर की। दुनिया में पंजाब और मुंबई और जयपुर के बीच में ही एक ऐसी ट्रेन चलती है जिनको हम कैंसर स्पेशल बोलते हैं, कैंसर एक्सप्रेस बोलते हैं। दुनिया में इस नाम की और कहीं भी ट्रेन नहीं चलती है। तो पंजाब दुनिया का कैंसर कैपिटल है, और कैंसर ही नहीं, भूलने की बीमारी हो और जो लीवर की बीमारी हो हैवी मेटल की वजह से, वो सब पंजाब में है। और उसकी रिसर्च रिपोर्ट मोदी जी के पास है, जो कि हमारे ही एक मित्र ने दी हुई है। तो अभी हमें पंजाब को रिवाइव करना है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब की, वो है नेशनल सिक्योरिटी। क्योंकि जो अब आप कहोगे खालिस्तान मूवमेंट का शोर जो पंजाब फार्मर प्रोटेस्ट में हुआ, वो कुछ नहीं हुआ। पंजाब फार्मर प्रोटेस्ट बेसिकली आड़तियों का प्रोटेस्ट था, ताकि वो कमीशन बंद ना हो जो फार्म बिल से कमीशन आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा 2014 में मैंने लिखा था कि फार्मर अगले 10 साल के लिए मोदी की प्रायोरिटी रहेंगे, और वो हैं। दूसरा ये चीज है कि भारत में, अगर आपको पता ना हो, 2014 से पहले 96% जो दालें हम खाते हैं भारत में, जितनी भी दालें हैं, 96% दाल कनाडा से आती थी। और कनाडा में भी इन दालों का प्रोडक्शन वो सरदार ही करते थे जो पंजाब से गए हुए हैं। 2014 के बाद भारत ने कहा, सरकार ने कहा कि हम कनाडा से क्यों इंपोर्ट करते हैं, हम भारत में क्यों नहीं पैदा करते। तो आपको याद होगा जब 2014 में, जब मैं नाम भूल गया मंत्री जी का, राधा मोहन सिंह, जब राधा मोहन सिंह मंत्री थे, तो उनका फोकस था दलहन की खेती पे ज्यादा। यानी हम भारत में पैदा करें दालें। जब भारत में दालें पैदा होने लगी, तो सडनली पंजाब जो कनाडा कंट्रीब्यूशन था, वो 96% से घट के कुछ मेरे ख्याल से 10% रह गया, 10 या 15% ही रह गया। तो अब इससे किसको अफेक्ट हुआ? वही सरदार जो पंजाब से गए हैं कनाडा में। तो शोर कौन मचाएगा? वही मचाएंगे। उनको कैमोफ्लेज कौन करेगा? खालिस्तान करेगा। तीसरी बात, नेशनल सिक्योरिटी की मैंने कही, तो खालिस्तान का इस्तेमाल पाकिस्तान ISI करता है, क्योंकि वो अपने पंजाब में तो कुछ नहीं कर पाए। उनकी नजर ये, भाई पूरे ही सूबा लो, आधा सूबा हमने क्यों लिया, हम तो पूरा सूबा लेंगे। तो ये ISI का मॉडल है जो हमेशा डिस्टर्ब रखना चाहता है, और ये कांग्रेस का बोया हुआ बीज है खालिस्तान का, जो वो आज भी दुनिया, हम लोग काट रहे हैं उसकी फसल। सर, ये जो फार्मूला आए, इसको कहाँ पे सुझाने में कमी कर गई बीजेपी? मतलब इतना बड़ा ये जो नहीं बेटा, बीजेपी ने कमी नहीं है। पंजाब का जो फार्म लॉ आए हैं भारत के, वो बीजेपी की कमी कहीं नहीं है। हाँ, एक नजर से बीजेपी की कमी रही कि बीजेपी के MLA और मंत्री अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके उसको नहीं बता पाए, और हर चीज एक बीजेपी का एक निकम्मापन भी है।
और वो निकम्मापन ये है कि बीजेपी के जितने एमपी एमएलए हैं इनमें से 70% ऐसे लोग हैं जीत के आए हैं जो जिनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं अगर मोदी नहीं होते, और इन्होंने हर चीज की जिम्मेदारी मोदी पे डाल दी है। ये खुद मेहनत कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जो फार्मर प्रोटेस्ट है आप कहीं भी उठा लीजिए बेटा, ये राजनीतिक प्रोटेस्ट है। इस प्रोटेस्ट का फार्मर से कोई लेना देना नहीं है। देखो, आप भारत के किसान को समझो। भारत का किसान जो है वो आपकी बातों पे उसने 70 साल विश्वास करा, उसका विश्वास टूट चुका है नेताओं से। वो जानता है नेता प्रॉमिस करते हैं, बोल देते हैं, कुछ नहीं है, मिलता कुछ नहीं है, हमें वही कर्ज लेना है, हमें वही फांसी पे लटकना है, हमें वही रासायनिक खाद इस्तेमाल करनी है, यूरिया के लिए डंडे खाने हैं, कोई कुछ नहीं करने वाला। लेकिन जब आप किसान के लिए कुछ करते हो, और एक बार नहीं, जब आप 3, 4, 5 क्रॉप साइकिल में करते हो, जब 3, 4, 5 क्रॉप साइकिल निकलते हैं, तो किसान ही नहीं आप पे विश्वास करता है, किसान की आगे की 2 जनरेशन भी आप पे विश्वास करती हैं। ठीक है, इसके लिए समझना ये जरूरी है, जैसे कि मान लो मेरे दादाजी ने लड़ाई लड़ी आजादी की, ठीक है, जो उन्होंने लड़ी, ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर। लेकिन मेरे दादाजी कितनी परेशानियों से गुजरे वो कौन समझ सकता है? वो मेरे पिताजी सबसे अच्छे तरह से समझ सकते हैं। और मेरे पिताजी ने मुझे कहानी सुनाई तो कुछ कुछ मैं समझता हूं, ज्यादा तो नहीं समझता भाई। जेल में कैसे रहते हैं, कैसे डंडे पड़ते थे, कैसे क्या किस तरह उन्हें रखा जाता था, वो पर्सनल फीलिंग तो मेरे पास नहीं है। पिताजी ने तो देखा है लेकिन मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैं पिताजी की बात पे बिलीव करता हूं। लेकिन मेरे बेटे को जब मैं बताऊंगा तो वो 3 जनरेशन आगे निकल गया, तो उसकी समझ में तो कुछ आएगा नहीं। अरे ठीक है, ही विल नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ व्हाट माय दादाजी हैज गॉन थ्रू, राइट। वही किसान के साथ है कि किसान को जब इमीडिएट बेनिफिट होता है, 3, 4, 5 क्रॉप का होता है, तो वो अपने बच्चों को बताता है, उसके बच्चे अपने बच्चों को बताते हैं, तो आगे की 2 जनरेशन के लिए ये काफी है। अब जब किसान का बच्चा किसानी में जाएगा, जो कि आज रिवर्स प्रोसेस शुरू हो गया है कहीं कहीं, जब वो एक्सपीरियंस करेगा और वो वापस जाएगा और वो अपने बच्चों को बताएगा, तो ये साइकिल आगे चलता चला जाएगा। तो पंजाब की जहां तक सवाल है, पंजाब पे अभी केवल सर्कस का मजा लो, ठीक है, समय आने पे मैं खुद बताऊंगा कि क्या हो रहा है। सर, मेरा एक सवाल था। सर, आफ्टर बंगाल वायलेंस आपको लगता है क्या कि जैसे यूपी में योगी जी ने बहुत अच्छा से कंट्रोल करके रखा है लॉ एंड ऑर्डर, तो बंगाल वायलेंस में हम लोगों को क्यों कमी महसूस हो रहा है? उसका कुछ एक्शन होगा क्या? गीतिया जी, बंगाल वायलेंस कोई आज नहीं हुआ है। बंगाल वायलेंस की हिस्ट्री पिछले 40-45 साल की है, ठीक है। पहले ये होता था कि बंगाल वायलेंस जब होता था कम्युनिस्ट के टाइम में, तब लोगों को गायब कर दिया जाता था, लोगों को मार के उनकी लाशें नहीं बिछाई जाती थी, लाशें दिखाई नहीं जाती थी, बल्कि उन्हें गायब कर दिया जाता था। भले ही उनके टुकड़े करके गाय डाल दो या सुंदरवन में जाके मगरमच्छों को खिला दो, ठीक है। तो ऐसा तब भी होता था। ममता ने क्या करा, जब ममता आई तो ममता ने वो ग्रुप को ओवरटेक करा। अब वो खुल के वायलेंस करने लगा। वायलेंस बहुत थी, अभी तो जितनी हुई है वो कम हुई है। दूसरी बात, जब आप बंगाल वायलेंस की बात कर रहे हो, आपको कितनी आवाजें बंगाल से सुनाई दे रही हैं? बहुत कम। बंगाल वायलेंस पे सबसे ज्यादा शोर वो मचा रहे हैं ट्विटर पे जो कभी बंगाल गए नहीं है, जिनको बंगाल की ABCD पता नहीं है, जिनको ये नहीं पता नक्सलबाड़ी एक जगह है। और नक्सलबाड़ी में इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर CPIM का सुगड़ा साफ करके भाजपा के लोग जीते हैं। दूसरी बात, ये जो सोशल मीडिया पे उतावले लोग हैं बंगाल के बाहर के, जो वायलेंस पे बोलते हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो एक चिकन नेक जैसे हम बोलते हैं, वहां पर पूर्ण रूप से भाजपा का कब्जा हो गया, हमने वो सिक्योर कर लिया। बंगाल का जब चुनाव हो रहा था तो मैंने लिखा था अपने फेसबुक पे और टेलीग्राम पे कि बंगाल और असम का जो चुनाव हो रहा है, बंगाल में अगर हम हार भी जाते हैं तो हम मैनेज कर लेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस से, इंटेलिजेंस से, इंटरनली हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर हम असम हारते हैं तो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने तब लिखा था कि मेरे लिए असम जीतना प्रायोरिटी है एज कंपेयर टू बंगाल जीतना। तो बंगाल में कोई कुछ नहीं कर रहा,
ये नहीं है। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए, अगर आप मोदी जी को आज से नहीं 1980 से समझने की कोशिश करें, दो मतलब चीफ मिनिस्टर भी जब वो एक कार्यकर्ता थे, आरएसएस के प्रचारक थे, तब से मोदी संविधान के बाहर जाके कोई काम नहीं करता है। तो जब लोगों ने शोर मचाया 356 लगा के प्रेसिडेंट रूल लगा दो, महाराष्ट्र में लगा दो, बंगाल में लगा दो, यहां लगा दो, वहां लगा दो, मैंने तब भी लिखा था भूल जाओ। 356 मोदी की फेवरेट धारा है ही नहीं। मोदी 356 का इस्तेमाल कभी करेंगे ही नहीं। एक ही कंडीशन में मोदी कर सकते हैं, अगर ममता बनर्जी बोल दे कि बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है, तभी 356 का इस्तेमाल होगा, वरना मोदी जैसा इंसान 356 को कभी नहीं छुएगा। तो बंगाल में अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। आप एक चीज देखिए, एक पैरेलल ड्रॉ कीजिए। गुजरात में 2002 के दंगे से पहले हर हफ्ते लगभग गुजरात में दंगे होते थे। 2002 के दंगों के बाद आज तक गुजरात में एक दंगा नहीं हुआ है। तभी मैंने कुछ दिन पहले लिखा था कि शांति के लिए आहुति देनी पड़ती है। राजनीति लोगों को लगती है, ट्विटर पे लिखा, फेसबुक पे लिखा, राजनीति हो गई जी, मोदी को एडवाइस कर दी, नहीं सुबह उठे चलो मोदी को कुछ एडवाइस करते हैं। ये सीरियस लोगों के लिखने के तरीका, और इसमें बहुत सारे ब्लू टिक वाले भी लोग हैं जो सुबह सुबह मोदी को एडवाइस करते हैं। राइट विंग के लोग हैं जिनको मैं रायता विंग बोलता हूं, और यूट्यूब चैनल पे हैं जो बहुत बड़े बड़े अफसर रह चुके हैं, कॉर्पोरेट में रह चुके हैं, नेता रह चुके हैं, या नेता हैं, या नेता बनना चाहते हैं, या अपने आप को पत्रकार बोलते हैं। ये सब एडवाइस देते हैं। इन सब की एडवाइस कोई नहीं सुनता है। दीज आर ओनली पीपल हु आर ऑडियंस इन अ सर्कस। ये केवल ताली बजाने के लिए है, इनसे ज्यादा इससे उम्मीद हम कर नहीं सकते। और मैं बहुत फ्रैंक बोल रहा हूं, मुझे क्षमा करें शब्दों के लिए, मैं बहुत फ्रैंक बोल रहा हूं। लेकिन बंगाल की जहां तक बात है, बंगाल का शोर केवल वो लोग मचा रहे हैं जिन्होंने कभी बंगाल में पैर नहीं रखा। रहा सवाल बंगाल की वॉयलेंस का, हाँ हुआ है, दुखद है, निंदनीय है, कंडेम करना चाहिए हर एंगल से। जिन्होंने करा है उनको पनिश करना चाहिए, लेकिन पनिश का मतलब ये नहीं होता है कि मोदी तलवार और बंदूक लेके मोदी और अमित शाह बंगाल में कूद जाएंगे और काटपीट करना शुरू कर देंगे। जी नहीं, जो होगा वो संविधान के अंदर से होगा, संविधान का इस्तेमाल करके होगा, ताकि कोई भी उंगली ना उठे, और जो समाधान निकलेगा वो परमानेंट समाधान निकलेगा। जैसे गुजरात का परमानेंट संविधान वो निकला है कि जहां हत्याएं, रेप इत्यादि इत्यादि कम्युनल वायलेंस रोज का काम था, अब पिछले 15-20 साल में वहां कुछ नहीं हुआ है। Thank you, sir. One question each, and please see that the question doesn't repeats. सनातन जी, आप अपना क्वेश्चन रखिए। मैं गौरव जी नमस्कार। नमस्ते भैया। पहले आई एम श्योर आप बीच में कोई कारण से रीजन से गायब रहे होंगे। ऑब्वियसली आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत एनालिस्ट का काम करते थे, मैं बहुत आपको फॉलो करता था 2019 और के समय भी। लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ डिफरेंस रखता हूँ, मेरी सोच है ये। ऑब्वियसली प्लस माइनस हो सकती है, वो बात अलग है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं शेल्फिश हूँ, मैं ग्रीडी हूँ, मैं बहुत स्पेशल में ये बात बोलता हूँ। अरे कुछ नहीं, बोलो, सवाल पूछो। हाँ एग्जैक्टली। मेरी सोच कैसी है सर, एक और मोदी सपोर्टर बोल के नहीं, ये बात सही है आपके जैसे कि मोदी जैसा पर्सन शायद सदियों या दशक में 2-3 दशक में शायद एक बार आता है एक आदमी, ठीक है। और उसीलिए मेरी ग्रीड बढ़ती है कि, और मेरा सवाल है, चूंकि आप जवाब बेटर दे पाओगे मेरे को ऐसा लगता है कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे ना सर, उनकी उम्र 63 की थी, और जब 2024 में वापस रेडी होंगे 73 के होंगे। और बीजेपी का जो इनका एक नियम है 75 के बाद एक पदाधिकारी रहता नहीं है, और एवरेज इंडियन की एवरेज एज 68 होती है। सो आज के डेट में मोदी जी जो जी रहे हैं वो बोनस है हमारे लिए।
तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं 7 साल के कार्यकाल को देखूं और मोदी जी के विजन्स को देखूं, मेरा ये फीलिंग है कि कुछ कुछ कार्य मोदी जी ने स्लो किया, ये मेरी व्यू है, स्लो किया, और शायद उस चीज को बहुत स्विफ्टली कर सकते थे। उनकी कैपेबिलिटी है, वो उनकी क्षमता है करने की, वो कर सकते थे, जिससे उदाहरण फैक्टर्स है। उदाहरण मेरे को लगता है कि उदाहरण मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे ब्यूरोक्रेसी का जो फैक्टर है कि किसका? उनके ब्यूरोक्रेसी, हमारी बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी फैक्टर बनती है चीजों को स्लो करने के लिए। और ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि बहुत सारे काम स्लो नहीं किए गए, बहुत स्लो किए गए हैं, क्योंकि अड़चनें डाली जाती है। क्योंकि देखिए, नेता तो हर काम नहीं करता है, नेता अपना विजन रखता है और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी उसको आगे फॉलो अप लेती है। तो बहुत सारे चीजों को पैरेलली किया जा सकता था टू मेक ए डिफरेंस। जबकि मेरा खुद का मत है कि अगर इस इंडिया में रियल सोशलिस्ट कोई पैदा हुआ है तो मोदी जी हैं। बिकॉज अगर सोशलिज्म का डेफिनेशन जो सिखाया गया उसको देखें तो रियल अगर वो काम जो कर रहे हैं इकोनॉमी वाइज या अपलिफ्टिंग ऑफ द पीपल, इस मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि वो बॉटम से शुरू कर रहे हैं। और उन्होंने 2014 में एक जी न्यूज की इंटरव्यू मैंने देखा था जिसमें कहा था मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि 3 बेसिक चीज दूं, इलेक्ट्रिसिटी, घर और पानी, और उसमें वो कार्यरत है, देयर इज नो क्वेश्चन। पर एट द सेम टाइम ये है कि बहुत सारी चीजें हैं जो स्लो चली है, चाहे आप एजुकेशन पॉलिसी बोल लो, हिस्टोरिकल इश्यूज बोल लो, या ये है, क्योंकि ये काम उनको नहीं करना है, पर ये काम उनके जो भी उनके अंडर में मिनिस्ट्रीज है, they could have done, but what stopped it, I don't know. I got your point. Let me explain this. देखो, पहली चीज क्या है कि ब्यूरोक्रेसी एक सरकार का हिस्सा है, इससे तो कोई दो राय नहीं है। और इससे भी किसी की दो राय नहीं होगी कि नेता का काम पॉलिसी बनाना होता है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है, डायरेक्शन देना होता है, और उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम ब्यूरोक्रेसी करती है। इसलिए ये कहना, आप जब सिस्टम में आते हैं तो आप सिस्टम के अगेंस्ट काम नहीं कर सकते, आप तोड़ फाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक चुने हुए व्यक्ति होते हैं और आपको भी आगे चुनाव लड़ने होते हैं। आप ब्यूरोक्रेसी के साथ जेल करते हैं। मैंने एक बार लिखा था कि कोई भी सरकार आए, कि मोदी जी नहीं, कोई भी सरकार आए, पहले 5 साल ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो ये सोच के चलते हैं, अरे 5 साल बाद तो चला जाएगा, अपना फिर मस्ती चालू, ठीक है। तो दे टेक इट वेरी लाइटली द फर्स्ट 5 years. When the next 5 years same person come back with power and with majority, that is very important, then the bureaucracy understand now we have to work. क्योंकि सेंट्रल में जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसकी लाइफ, उसका जो लाइफ साइकिल है वो किसी भी ब्यूरोक्रेट का 10 साल से ज्यादा नहीं होता है। हो सकता है किसी का 12 साल हो, 13 साल हो, लेकिन मोस्टली जो लाइफ साइकिल होता है वो 10 साल का होता है। तो वो अगले 5 साल में काम करते हैं। यही कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने बोला था कि 2019 से 2024 जो होगा वो एस्पिरेशंस को पूरा करने का पीरियड होगा। 2019 से 2014 से जो 19 का पीरियड था वो फाउंडेशन लेइंग पीरियड था। और मोदी जी से अच्छा ब्यूरोक्रेसी को कोई नहीं समझ सकता जिसने 15 साल में गुजरात बदल दिया। तो उनको पता है कि कहां। दूसरी चीज ये कि ब्यूरोक्रेसी केवल एक ब्यूरोक्रेट नहीं होता है, आप उसमें जुडिशरी भी जोड़िए, आप उसमें ब्यूरोक्रेट्स के जो कैंपिंग है, जो लॉबी है, जो कांग्रेस फेवर है या अपोजिशन फेवर है, वो सारे भी आते हैं। आप ब्यूरोक्रेट्स की जब बात करते हैं तो आप ब्यूरोक्रेट्स को हमेशा मेरिट से तोलते हैं, भाई वो रिजर्वेशन से आया है, वो दलित से आया है, वो ये चीजें भूल जाओ। एक बार आ गया तो काम करना है। आने का जो सिस्टम है उस पे हम डिबेट कर सकते हैं और उस पे करनी भी चाहिए कि मेरिट क्यों नहीं है और रिजर्वेशन क्यों नहीं है, वो डिबेट करनी चाहिए। लेकिन एक बार जब आ जाता है तो उसको काम करना पड़ता है। दूसरी बात आपने कही, जैसे आपने एग्जाम्पल लिया एजुकेशन का, मैंने एक प्रोग्राम में बताया था यूट्यूब चैनल पे कि एजुकेशन के 4 स्टेक होल्डर होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स। अब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो चलो है, लेकिन अगर आप जब आप एजुकेशन की बात करते हैं तो आपका मुख्य ध्येय है करिकुलम पे, जो सिलेबस है, जिसमें हमारी पुरानी हिस्ट्री को हटा दिया गया है,
जो असली हिस्ट्री है, और मुगल की हिस्ट्री या अंग्रेजों की हिस्ट्री भर दी गई है बुरी तरह से, ठीक है ना। आप मेरे को एक बात बताइए, अगर आज मैं सिलेबस चेंज कर दूं लेकिन पढ़ाने वाला व्यक्ति वही है जो लाल सलाम से आया हुआ है, जिसकी सोच लाल सलाम है, और लाल सलाम ने, याद रखिएगा, मैं कभी आगे किसी सीरीज में अगर पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगा, अभी तो लंबा हो जाएगा। लाल सलाम की भारत में एंट्री हुई थी 1970 में, जब उसने सबसे पहले हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और बॉलीवुड पे कब्जा किया था, ताकि माइंड गेम खेल सकें, जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको अफेक्ट कर सकें, और तब से ये सारी चीजें चेंज होनी शुरू हो गई। इसमें बहुत सारा जो रोल था वो केजीबी ने प्ले करा था, जो यूएसएसआर की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, और बाकी जो कांग्रेस की थी, सरकारें जो कांग्रेस की रही वो उनके हाथ में खेली, तो उसमें नहीं जाते। लेकिन जो आज टीचर है उनको चेंज करने में वक्त लगेगा। आज आप देखिए, इसलिए जो एजुकेशन रिफॉर्म है, और तीसरा स्टेक होल्डर है बच्चे। बच्चों का, स्कूल का अगर आप देखें तो लाइफ साइकिल होता है कम से कम 12 साल का, 12-13 साल का, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि 2 साल में, 3 साल में या 5 साल में रिफॉर्म हो जाए तो नहीं होगा। पहला आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना है, दूसरा आपको टीचर्स अच्छे अपॉइंट करने, वो भी आप झटके से नहीं कर सकते वरना मारामारी मच जाएगी। तो आपको सिस्टम तो नहीं तोड़ना है ना, आपको सिस्टम से काम भी चलाना है और समय। जैसे मैं हमेशा एक फिश टैंक एनालॉजी लेता हूं, जैसे बड़ा फिश टैंक अगर होता है तो आप उसमें बहुत सारी मछलियां होती हैं, बड़ी छोटी हर तरह की। आप मछलियों को बाहर तो निकाल नहीं सकते, और पानी गंदा हो गया है तो आप पानी कैसे साफ करेंगे? एक तरफ से आप आउटलेट निकालेंगे, एक तरफ से आप इनलेट डालेंगे। फ्रेश पानी एक साइड से डालेंगे, खराब पानी दूसरे साइड से उसी प्रेशर से निकालते रहेंगे। तो फिश टैंक के अंदर कोई चेंज पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे समय के हिसाब से पानी साफ हो जाएगा। तो जो आपका सवाल था कि कुछ चीजें बहुत धीरे मोदी में हो रही हैं, वो धीरे नहीं हो रही हैं, उनकी नियति ऐसी है कि वो धीरे ही होंगी, वो तेज नहीं हो सकती। अगर आप तेज करेंगे तो सिस्टम टूट जाएगा, हाहाकार मच जाएगी, पब्लिक अनरेस्ट होगा। वो तो आप नहीं चाहेंगे ना पब्लिक अनरेस्ट हो। तो वो सारी चीजें ध्यान में रख के काम करा जा रहा है। इसीलिए जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जो उसके मंत्री हैं, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है या ज्यादा प्रेशर नहीं डाला जा रहा। आपको याद होगा पहली मंत्री बनी थी भाजपा सरकार की स्मृति ईरानी। अब स्मृति ईरानी तो यंग है, ठीक है, उन्हें तो बदलाव करना है, वो तो राहुल गांधी को झेल के आई हुई है। तो उन्होंने तलवार ली, मारकाट करना शुरू करा, यहाँ का वाइस चांसलर हटाओ, वहां का वाइस चांसलर हटाओ। तो जितने सिस्टम था, जो ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम था, उसमें अनरेस्ट आ गई और वो वोल्केनो फटने वाला था। इसलिए स्मृति ईरानी को वहां से निकाला कि भाई इतनी मारामारी नहीं करनी है, तेरे से नहीं संभलेगी, बाहर आ जा, इसमें बहुत धैर्य की जरूरत है। तो उनको वहां से बाहर निकाल के टेक्सटाइल दिया गया था, क्योंकि उनका काम करने का तरीका तो यह था, आज वाइस चांसलर अच्छा नहीं है, कल हटा दो, सिस्टम जैसे आप बोल रहे हैं ना चेंज कर दो। उनका तो यह था मैं 5 साल में एचआरडी बदल दूंगी, लेकिन एचआरडी 5 साल में नहीं बदल सकती। ओके, थैंक यू सर। क्विक राउंड, दिव्या जी प्लीज आप अपना प्रश्न रखिए। श्योर। वेरी गुड इवनिंग गौरव जी। गुड इवनिंग दिव्या मैम। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है आपसे बात करना। मैं आपसे एक सवाल पीछे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि 700 के करीब लोग जुड़े हुए हैं और एकदम परफेक्ट टाइमिंग था। गायत्री ने आपसे सवाल पूछा, क्योंकि ये सवाल गौरव जी की कोई भी प्लेटफॉर्म हो और कोई भी टॉपिक हो, बट ये इमोशन के साथ ना ये सवाल आता ही आता है, भारत बीजेपी ने क्या किया पोस्ट इलेक्शन वायलेंस पे। तो आपने ना इसमें वो कवर किया कि इसका इतिहास पुराना है वायलेंस का। आपने प्रेसिडेंट रूल और गवर्नर रूल को भी आपने कवर किया, लेकिन मैं आपसे इसमें एक लास्ट पॉइंट और चाहती हूँ कि आप इसमें एक्सप्लेन कर दें कि बीजेपी जो कर रही है क्या इनफ है, या इसमें भी कुछ और कर सकती है, या फिर गेम ऑन है। वैसे मेरा सवाल आपको से दूसरा मैडम सुनामी जो होती है ना, जब सुनामी समंदर के अंदर होती है तो वो दिखाई नहीं देती है। सतह पे जो शिप्स होते हैं उनको भी पता नहीं चलती है कि अंदर सुनामी चल रही है। सुनामी तब दिखती है जब वो किनारे से टकराती है।
तो बंगाल का जहां तक सवाल है, बंगाल में सुनामी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और खास तौर से मोदी अमित शाह, मैं जेपी नड्डा को नहीं गिन रहा हूं, मोदी अमित शाह, बंगाल बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। लेकिन ये अब अगर किसी को भी ये लगता है कि मोदी और शाह अपनी स्ट्रैटेजी बाहर निकल के पब्लिक में बताएंगे, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि कुछ चीजें राजनीति में होती हैं जहां पब्लिक ओपिनियन नहीं लिया जाता और लेना भी नहीं चाहिए, और कुछ काम होते हैं जहां पब्लिक ओपिनियन जरूरी होती है और वहां पब्लिक ओपिनियन ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन सिस्टम में अगर हमें करिकुलम में रिफॉर्म करने हैं, तो क्योंकि उसका संबंध सीधा बच्चों से होता है, तो मोदी सरकार ने लोगों से पूछा भाई सिलेबस के लिए आइडिया दो। लेकिन जब आप फार्म लॉ है जो कि एक रिफॉर्मिस्ट स्टेप है, वहां पर आप जनता से नहीं लोगे क्योंकि जनता को उसका आइडिया नहीं है। इसलिए बंगाल के बारे में मैं आपको लिख के एक चीज दे सकता हूं, क्योंकि अब आप खुद बताओ मैडम, 2 बार बंगाल चुनाव में मैं बंगाल गया, ठीक है। बंगाल में बहुत सारे लोग मुझे पढ़ते हैं, बहुत सैकड़ों लोग मुझे पढ़ते हैं बंगाल से, और मेरी अपनी भी टीम ग्राउंड पे है वहां बंगाल में। लेकिन मैं किसी से नहीं मिला। 2 बार गया, ओवरनाइट गया और मिलके आ गया, अपना काम करके आ गया। तो यानी कहीं तो हमारे पीछे है। एक मिथ और है जो मैं आज क्लियर करना चाहता हूं। बंगाल चुनाव जब चल रहे थे तो आखिरी 3 रैली या कहें 3 राउंड जो थे, उसमें मोदी जी ने अपनी रैली कैंसिल कर दी, अमित शाह ने अपनी रैली कैंसिल कर दी, और बताया यह गया कि ये रैली इसलिए कैंसिल करी गई है कोविड को ध्यान में रखते हुए, ताकि भीड़ ना हो और कोविड ना फैले। मैम, ये जो स्टेटमेंट था ना, ये जनता के लिए स्टेटमेंट था, ये मोदी के लिए और मेरे लिए स्टेटमेंट नहीं था। जो आखिरी 3 राउंड में कैंसिल करी रैली, वो इसलिए करी क्योंकि हमें क्लियर पता था कि 77, 80, 85, 90 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। इसलिए एफर्ट करना, क्योंकि जनता वहां कंसोलिडेट हो चुकी है। गेम खेला गया था दिल्ली से, यूपी से और भगवाधारी के वजह से, और वो क्लिप जब मुसलमानों में फैला तो वो टोटली कंसोलिडेट हो गए, सब भूल गए ट्रिपल तलाक इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और क्योंकि मुसलमान को आप एक चीज समझो, मुसलमान अपने धर्म से जुड़ा हुआ हमेशा है। बच्चा जब मुसलमान में पैदा होता है, मुस्लिम परिवार में, तो धर्म की शिक्षा पहले दिन से दी जाती है। जब क्रिश्चियनिटी में बच्चा पैदा होता है तो धर्म की शिक्षा पहले दिन से दी जाती है। लेकिन जब हिंदू समाज में बच्चा पैदा हुआ है तो धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है। तो वो कंसोलिडेशन जो हुआ, उससे पता था कि आगे समय बर्बाद करना बेकार है। इसलिए उस समय का बेस्ट बेनिफिट क्या निकाल सकते हो कि भाई कोविड की वजह से हमने रैली कैंसिल कर दी। ये काम इससे पहले भी हुआ है। जब बिहार का इलेक्शन हुआ था 2016 में, तो आप लोगों को अगर ध्यान हो, मोदी ने डीएनए शब्द इस्तेमाल करा था, डीएनए का। बिहार की चुनाव में बिहारियों के डीएनए के बारे में बात करी गई थी। जिस दिन मैंने वो रैली मोदी की सुनी, मैंने लिख दिया बीजेपी नहीं जीतेगी। और ये राउंड खत्म होने के बाद 1.5 साल के बाद बीजेपी वापस सरकार में आएगी। अगर आपको विश्वास ना हो तो मेरे ब्लॉग पे बिहार के चुनाव के काउंटिंग से 2 दिन पहले या शायद 1 दिन पहले का ब्लॉग मेरा पड़ा हुआ है, वो आप पढ़िए। आपको समझ में आएगा कि राजनीति खेली किस लेवल पे जाती है। ये ट्विटर, फेसबुक सब भूल जाइए। राजनीति अगर आपको समझनी है तो ट्विटर, फेसबुक बिल्कुल भूल जाइए। एम आई एबल टू आंसर यू, दिव्या मैम? यस गौरव जी, लेकिन मेरा एक सवाल है जो आपको देश के बाहर लेके जाएगा। मेरा जो मेन सवाल था, हाँ बोलिए। चाइना और इंडिया से रिलेटेड जितने भी अभी सवाल आपके सामने आए होंगे, आप सब सोच लीजिए, मैं इस पर टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि दुनिया को व्यस्त रखेगा चाइना छोटे छोटे अंतराल के बाद नया नया वेरिएंट छोड़कर, तो ऑन ग्राउंड लड़ाई के असर तो मुझे दिखाई नहीं देते। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है कि चाइना के साथ यूएसएसआर वाली हिस्ट्री रिपोर्ट होने के असर, रिपीट होने के असर कितने दिखते हैं आपको? मैम बिल्कुल दिखते हैं, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में एक बात याद रखिए, 5 साल का जो अंतराल होता है उसको हम बोलते हैं वेरी सून।
और 10 साल के अंतराल को हम बोलते हैं सून, 15 साल के अंतराल को बोलते हैं मिड रेंज, और 20-25 साल के अंतराल को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म, आई मीन सेमी मिड या मिड और लॉन्ग टर्म के बीच। चाइना को टूटना है ये तैयार है, क्योंकि दुनिया चाइना के एंटी हो चुकी है। 180 देश चाइना के अगेंस्ट हैं आज की तारीख में। लेकिन इसमें आपको अगर ये लगता है ये कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, 2024 में हो जाएगा, 2027 में हो जाएगा, तो नहीं होगा। दूसरी बात आपने करी, वेरिएंट छोड़ता है, आपने शब्द इस्तेमाल करा। चाइना वेरिएंट नहीं छोड़ता है, चाइना ने केवल एक छोड़ा है। 16 या 17 मार्च 2020 जब भारत में केवल 140 केस थे, टोटल 140 केस थे, उस दिन मैंने एक ब्लॉग लिखा था चाइना पे और वुहान वायरस पे। वो आप ब्लॉग फिर से पढ़िए। जो कोविड वायरस है, जो कोरोना वायरस है, ये मेरी लैंग्वेज में, मेरे टेक्निकल लैंग्वेज में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस इनेबल्ड वायरस है। ये म्यूटेशन अपने आप डेवलप करता है, अपने आप अपनी रेजिस्टेंस डेवलप करता है। ये इतना स्मार्ट इंटेलिजेंट वायरस है क्योंकि ये नेचुरल वायरस नहीं है, ये मैन मेड वायरस गया। तो म्यूटेशंस कभी खत्म नहीं होंगी। और म्यूटेशंस का जहां तक मतलब रहा, आपको गोल्फ बॉल एनालॉजी बताता हूं, या आप दिव्या मैम अगर आप साइन वेव समझ सकती हैं, जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं, साइन वेव से समझिए। पहली वेव बड़ी ऊंची होती है, दूसरी वेव शॉर्ट होती है, तीसरी वेव उससे शॉर्ट होती है, और ऐसे करते करते वो वेव स्ट्रेट लाइन में बदल जाती है। यानी अगर आपने बॉल ड्रॉप करी ग्राउंड पे, तो पहले तो बॉल बहुत ऊंची उछलती है, दूसरी बार में बहुत थोड़ी कम उछलती है, तीसरी बार में और कम उछलती है। ऐसे करते करते वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है, बॉल रोल करना शुरू कर देती है ग्राउंड पे उछलने की वजह। अगली जो थर्ड वेव अगर आती है, क्योंकि थर्ड वेव का जो डिटरेंट है वो वैक्सीन है, अगर थर्ड वेव आती है तो ये थर्ड वेव सेकेंड वेव की तरह 2 महीने की नहीं होगी, ये 1 महीने की वेव होगी। लेकिन जैसे पहली वेव में था कि 15 दिन का टाइम पीरियड था आदमी के पास, 15 दिन में वायरस मैच्योर होता था, इफेक्ट शो करना शुरू करता था। दूसरी वेव में ये टाइम रिड्यूस होके हो गया 7 दिन। तीसरी वेव में देख ले ये 3 से 4 दिन हो जाएगा, ऐसे रिड्यूस करता जाएगा। उसके बाद ये वायरस एक नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू से ज्यादा कुछ नहीं होगा। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द वैक्सीनेशन लेवल। इसीलिए भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि 31 दिसंबर तक कम से कम हम 70 से 80% भारत को वैक्सीनेट कर दें। अगर हमने वो कर पाए, और जिसका मुझे उम्मीद है हम कर देंगे, तो हम वायरस को टोटली कंट्रोल कर लेंगे और 2022 में भारत फिर से एक बार 2019 की लाइफस्टाइल में पहुंच जाएगा। ओके, कौशलेंद्र जी, आप अपना प्रश्न रखिए। दिव्या मैम, मैं आपको लिस्टर पे डाल रही हूँ। थैंक यू सर फॉर आंसरिंग। कौशलेंद्र जी, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। गायत्री जी, नमस्कार। बहुत अच्छी बात गौरव जी कह रहे हैं, बहुत देर से सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। कुछ बातों पे हो सकता है कि सहमति नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं बहुत बातों से इनके सहमत हूँ। मैं गौरव जी एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और अच्छा लगेगा उस पर आप कुछ कहेंगे कि भाजपा की 2014 के बाद में, क्योंकि 2004 से 2014 तक एक सरकार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में रही और उसमें एंटी इनकम्बेंसी रही, और 2014 में तमाम बातों को लेकर के मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और उस दिल्ली की सरकार के साथ ही बहुत से प्रांतों में भाजपा की सरकारें बनी। लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है कि 2014 के बाद किसी भी स्टेट में हम प्रायः आसाम को यदि हम छोड़ दें और गुजरात को छोड़ दें, गुजरात में भी हमारा अंतर 91-99 के आसपास ही रहा, बहुत पास की हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। तो ऐसा क्या कारण है कि राज्य सरकारों में, हरियाणा की स्थिति आपके सामने है, पंजाब में तो हमारा कहीं कोई नहीं, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, जहां पे कई जगह सरकारें बनी वो वैसे ही बनी जैसी कांग्रेस बनाती आ रही थी, लोकतंत्र में जिस तरह से कर रही थी, उसी रास्ते पे भाजपा की भी
चली और विधायकों की खरीद फरोख्त और कई चीजें दलों में आना जाना, वो उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि 2014 के बाद में दिल्ली की भारत सरकार को छोड़ दें और शेष जहां जहां राज्य सरकारें थी, आसाम के अलावा हम कहीं पर भी, एक तो हम नहीं, मतलब भारतीय जनता पार्टी रिपीट नहीं हो पाई, एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि दिल्ली, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, ये भी भारत के हिस्से हैं और यहाँ पर भी तमाम सेंटिमेंट्स काम करते हैं। तो वहां पे ये तमाम सेंटिमेंट्स क्यों नहीं काम कर पाए, जबकि दिल्ली में आपके नाक के नीचे पूरा प्रशासन है, दिल्ली पुलिस आपकी है, सारे लोग आपके हैं। और यदि हम कहीं पे अपनी बात के लिए इस बात को जब कहते हैं कि साहब ये इस तरह से वहां नहीं चल पाया, तो मुझे एक चीज लगती है गौरव जी, मैं चाहूंगा कि उस पर आप जरूर कहें कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, भले ही वे राज्य सरकारों के हो, भारत सरकार के हो, हम लोगों का विश्वास लोकतंत्र में। और आपने एक बात बहुत अच्छी बोली थी, मैं उसका समर्थन करता हूं कि मोदी जी भी जब 2014 में आए तो आप आनंद फानन में कोई काम नहीं कर सकते, सिस्टम है और सिस्टम को चलाना उसी रूप से चलाना पड़ता है जैसा सिस्टम का बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से उसका एक रोल है। मैं चाहता हूं कि इस पे आप जरूर कहें कि आखिर क्या कारण है। क्यों मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जहां जहां आपने मुख्यमंत्री बनाए, जैसे महाराष्ट्र में आपने बनाया, हरियाणा में बनाया, लेकिन सब जगह मुख्यमंत्रियों के स्वरूप इतने विकसित और इतने उन्नत नहीं लग रहे हैं। देखिए, आपकी बात मैं समझ गया। बेसिकली आपका ये है कि भाजपा अपनी जीत को राज्यों में रिपीट क्यों नहीं कर पाती है और राज्य कुछ उसको सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, जबकि लोगों की सेंटिमेंट्स भाजपा के साथ होते हैं। इसका सीधा सा जवाब है और बहुत फ्रैंक जवाब दूंगा उदाहरण के हिसाब से। जब आप असम की बात करते हैं तो आप बेसिकली असम को जब देखते हैं तो आप कहते हैं कि असम में भी मुसलमान है और बंगाल में भी मुसलमान है, लेकिन असम जीत गया, बंगाल हम नहीं जीत पाए। भारत में अनफॉर्चुनेटली जो हमारे तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स हैं, चाहे वो टीवी पे हो चाहे यूट्यूब पे हैं, उन्होंने भारत के मुसलमान को आज तक समझे ही नहीं है। और मैं मुसलमान के फेवर में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सनातनी हूं, मैं सनातन को सपोर्ट करता हूं, ठीक है, मैं मुस्लिम आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन एक चीज बात बताना जरूरी है, असम में जो मुसलमान है, जो असम का मुसलमान है, वो बांग्लादेश के मुसलमान को हेट करता है, इसलिए उसने ब्लॉक में आके भाजपा के लिए वोट दिए, उसने बंगाल की तरह वोट नहीं दिए। जब आप दिल्ली की बात करते हैं, अगर मान लीजिए भाजपा की सरकार दिल्ली में बन जाती तो अरविंद केजरीवाल क्या करता, आप वो सोचिए। अरविंद केजरीवाल के पास फंड तो आते, चाहे वो कुछ कॉर्पोरेट से आ रहे थे, चाहे वो कांग्रेस दे रही थी या बाहर से आ रहे थे, जहां से भी आ रहे थे। अब फंड्स की आज बात नहीं करते, कभी और करेंगे, वो भी डिटेल है मेरे पास। अगर हम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली नहीं देते तो वो पूरे देश में गंदगी फैलाता, इसलिए हमने उसे एक दिल्ली नहीं दिया, हमने उसे एक म्युनिसिपैलिटी दे दी। ऐसे सोच के चलिए, क्योंकि दिल्ली, और जब देखा कि अरविंद केजरीवाल हाथ से निकल रहा है दिल्ली में, तभी हमने पार्लियामेंट में लॉ पास करा या कहीं बिल पास करा, जहां हमने जो दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर, वो हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में दे दी। अब अरविंद केजरीवाल क्योंकि पॉलिटिकल है, इसलिए उसे पॉलिटिकली एक्सपोज होना, तो जितना वो मिस एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली में करता है, लोग उसको एक्सपोज करते हैं। वो एक्सपोजर गोवा में भी दिखता है, वो एक्सपोजर यूपी में भी दिखता है, पंजाब में भी दिखता है, उत्तराखंड में भी दिखता है, तो वो एक डेटरेंट का काम करता है। देखो, राजनीति हमेशा जीत से नहीं होती है। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लें, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये तीनों जो लोग थे, वसुंधरा राजे, रमन सिंह और हमारे मामा जी, ये तीनों आडवाणी एरा के लोग हैं। इन्होंने पिछला चुनाव आडवाणी जी के आशीर्वाद के नीचे जीता था, ठीक है, जब इनकी शुरुआत हुई थी। और वसुंधरा राजे की जो माता जी थी या शायद क्या बोलेंगे, मेरे ख्याल से जो विजय राजे जी थी, माता जी थी उनकी, माता जी थी, बुआ जो भी थी, तो वो जो थी वो भाजपा में नुक्कड़ पे बैठ के
टिकट बांटती थी सड़क के, जैसे दिल्ली में हनुमान मंदिर के पीछे बैठ के इनकी गोष्ठी लगती थी रोड साइड पे, और वहां सारे कार्यकर्ताओं से मिला करती थी। क्योंकि वसुंधरा राजे को घमंड था मोदी का, मोदी से बेटर होने का। मामा जी जो थे वो मोदी से अपने आप को, खुद को प्रधानमंत्री देखते थे। रमन सिंह थोड़े लथार्जिक हो गए क्योंकि उसमें उनमें वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं आई। तो वहां पर भाजपा, और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जानबूझ के हारी। वहां हारना जरूरी था क्योंकि इन लोगों को अपनी हैसियत पता होनी चाहिए। ये जरूरत से ज्यादा उड़ने लगे थे। आज आप देख लीजिए, मामा जी तो वापस आ गए, लेकिन आज मामा जी टोन डाउन है। वो पहले वाले मामा जी नहीं है जो प्रधानमंत्री को कुछ नहीं समझते थे। इसलिए इन 3 राज्यों में भाजपा का हारना बेनिफिशियल रहा। दूसरी बात, कई बार क्या होता है, कुछ राज्यों में स्ट्रेटेजिकली हारा जाता है ताकि जो मेजर राज्य हैं वहां पर जीत अर्जित करी जा सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2016 में बिहार में जब मोदी जी हारे थे, जब भाजपा हारी थी, तो मैंने तब भी लिखा था, मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे ब्लॉग में लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा। उसमें मैंने लिखा था भाजपा का हारना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर भाजपा नहीं हारती तो यूपी नहीं जीत पाएगी। इसलिए बिहार भाजपा का हारना जरूरी था ताकि वो यूपी जीते। यूपी जीतना इसलिए जरूरी था क्योंकि 2019 जीतना था, क्योंकि यूपी में 80 सीटें हैं, बिहार में 80 सीटें नहीं है, इसलिए यूपी जीतना जरूरी था। दूसरी चीज, यूपी बहुत क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी एक बहुत क्रिटिकल स्टेट है, तो वो जीतना। तो जो आप बात करते हैं कि यहां हार गई, वहां हार गई, यहां हमने कुछ नहीं करा, वहां कुछ नहीं करा, देखिए मैं फिर बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, कई जगह हारना स्ट्रेटेजिक होता है। हमारा ध्येय ये है कि भारत की जो सरकार है वो भाजपा के हाथ में रहे, क्योंकि वहां से हमारा सारा काम चलेगा। राज्य की हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा सेंटर हार गया तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। रहा सवाल पंजाब का, बंगाल का, केरल का, आंध्र का, तेलंगाना का, यहां हमारा भाजपा का संगठन ही नहीं है, अभी भाजपा की लीडरशिप नहीं है। शुरुआत करी गई है, लेकिन लीडर डेवलप करना एक दिन का काम नहीं होता है। लीडर डेवलप करने में आपको ग्राउंड से जो लीडर डेवलप करना है, अगर आपको पैराशूट लीडर इस्तेमाल नहीं करना है और जीत तभी होती है जब ग्राउंड का लीडर हो। लीडरशिप डेवलप करने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। तो आप विश्वास कीजिए, केरल में अगली सरकार तो भाजपा की नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद की जो सरकार है ना, वो पक्का भाजपा की आएगी। बंगाल में अभी दीदी की सरकार है, लेकिन अगली सरकार भाजपा की आएगी, क्योंकि डिफरेंस केवल 50 लाख वोटों का रहा है। तेलंगाना में अभी वक्त लगेगा, केसीआर अपना काम कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं। आंध्र में आप देख लीजिए, जब जनता ने एक ऐसे आदमी को वोट दिया जो कि जाना जाता है कन्वर्जन्स के लिए, तो उसमें मोदी जी का क्या दोष है? हमने तो सिखाने की कोशिश करी ना। तो लोग, भारत के लोगों की एक सबसे जो वोटर्स हैं, उनकी एक मानसिकता होती है कि वो एक्सपेरिमेंट करता है, और वो एक्सपेरिमेंट इसलिए करता है क्योंकि उसको पुरानी चीजें जल्दी भूलने की आदत होती है। जो कि अब जैसे आप एग्जाम्पल लो, मोदी जी राम मंदिर बना दो, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। आज आप क्या मांग रहे हो मोदी जी से? तो हमारी भूख जो है, धैर्य, जैसे मैं बोलता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने में, युवराज रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर काम आया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था, वो था धैर्य। और बिना धैर्य के आप कोई जीत नहीं सकते। तो जब भी मैं लिखता हूं, मैं जब सनातन की बात करता हूं, जब मैं भारत की बात करता हूं, जब मैं हिंदू की बात करता हूं, जब मैं मोदी के सपोर्टर की बात करता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं धैर्य रखो, लीडर पे विश्वास रखो। फौज में 2 जवान अगर गोली से घायल हो गए या 2 जवान शहीद हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरी बटालियन जो है हथियार फेंक के भाग जाएगी। हम तो आज यही कर रहे हैं ना कि 2 जवान मर गए तो हम हथियार फेंक के भाग रहे हैं कि जी हमारे कमांडर को बदलो, 2 मर कैसे गए? अरे कैजुअलिटी तो होंगी, राजनीति में भी कैजुअलिटी होंगी, बॉर्डर पे भी कैजुअलिटी होंगी, लेकिन हम उन कैजुअलिटी, क्या आप जब बॉर्डर पे लड़ते हो, एक पलटन लड़ रही है, उसके 2 जवान शहीद हो जाते हैं, तो क्या आप हथियार फेंक के भाग जाते हो वहां से? आप और विगरस होकर लड़ते हो। वो जरूरत है आज की।
बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन डिवा मैम, आप अपना रखें। कौशलेंद्र जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू गायत्री मैम। नमस्कार सर। नमस्ते जब मैम। से मैंने ट्विटर ज्वाइन किया, आप तो मेरे लिए लाइक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और वैलिडेशन थे। जितना भी जी मैम। प्रोपोगेंडा होता था या जिस तरह की इंफॉर्मेशन आती थी, तो सीधे मैं आपके ट्वीट्स जाके चेक करती थी और जी मैम। बहुत खुशी होती थी कि जो आप कहते थे वो कहीं ना कहीं जाके सच हो जाता था। तो जी ट्विटर मैम। से आपका जाना आपका नहीं, ये तो हमारा लॉस हो गया। आप टेलीग्राम वेल पे आइए ना, मैं वही सब टेलीग्राम पे लिखता सर, हूँ। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं जहाँ रहती हूँ वहां पे टेलीग्राम एक्सेसिबल नहीं है, तो यू आप शुड मिडिल ईस्ट में। कंप्लीटली जी। थैंक यू फॉर नोटिसिंग दिस। एक आपकी दो लाइन थी, मुझे लगा कि मैं यहाँ पे कह दूं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। एंड जी मैम। इंडीड बहुत सही लाइनें थी, मैं वैलिडेट करती हूँ आज। सर मैम मुझे वैसे पूछना था मैंने जी, ये लाइनें मोदी जी के लिए नहीं लिखी थी, ये आप लाइनें मैंने वैसे अपने लिए लिखी थी, क्योंकि जब मेरी जी जी बजाते जी हैं लोग और मेरे को फ्रॉड बोलते हैं और चीट बोलते हैं, तो यही लाइन मेरे दिमाग में आती है कि 4 लोग मुझे चीट बोल रहे हैं, बट देयर आर 4000 मोर पीपल जिनके लिए मैं सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हूँ, तो मुझे छोड़ के नहीं जाना है। सर, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जो लोग आपको चीट या फ्रॉड या व्हाटएवर दे से, दे कम बैक एंड रीचेक योर ट्वीट टू गेट वैलिडेशन ऑन द facts what are being circulated. This is जी मैम। I'm guaranteeing you. Sir, जी if मैम। you're comfortable, I would like to know. In fact, बहुत से लोगों को ये पता करने का मन है, जानने का मन है about स्वामी जी। ही है उस समझ में मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि इफ ही इज अ फ्रेंड और व्हाट। अगर आप इस बारे में थोड़ा बहुत गाइड कर सके हम लोगों को, सो दैट वी कैन व्हाटएवर ही इज सेइंग उसको हम सच से मैम समझ सकें, सही तरह से देख सकें। मैम, स्वामी जी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, मैंने उनसे बहुत सीखा है, लेकिन वो सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, उनको केवल अपनी वैल्यू दिखती है और वो अपनी वैल्यू के लिए कहीं भी जा सकते हैं, किसी को भी धोखा दे सकते हैं। वो वाजपेयी जी को भी धोखा दिए थे और उन्होंने एक ऑरा क्रिएट करा हुआ है कि उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति कोई नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, स्वामी जी की फाइल पे लिखा हुआ है नॉट टू बी टच्ड। ओके, थैंक यू सर। इससे ज्यादा तो पूछने का आप कुछ रह ही नहीं गया, अपने आप में कंप्लीट है ये बात। आई रियली ओके, अप्रिशिएट योर रिस्पॉन्स एंड थैंक यू गायत्री। थैंक यू इंडियन मैम। डिवा मैम, थैंक्स। एपी, आप अपना बात रखिए, उसके बाद हेमा और उसके बाद विकेट। थैंक यू गायत्री जी। गौरव सर, मैं थोड़ा यहाँ पे जो गायत्री जी ने जो आपकी ग्राउंड रूल आवाज सेट नहीं आ कर रही, मुझे थोड़ा जोर से बोलिए। यहाँ पे गायत्री जी ने जो ग्राउंड रूल सेट कर रखी है कि 1 क्वेश्चन प्लीज, आई विल स्टिक टू दैट। बट उससे पहले मैं आपको 2 चीज के लिए हेट करता हूँ एक्चुअली। एक तो चीज है, आपने मेरा 50 लाख का बर्बादी कर दिया। आपने मुझे पहले बता देते कि मतलब ए प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज ए प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड, वो वाला अगर पहले बता देते तो मेरा 50 लाख बच जाता शायद। वो कैसे? वो तो सर पर्सनल थोड़ा है। मुझे अच्छा। ये चीज बहुत बाद में पता चला, उसके लिए मुझे एमबीए करना पड़ा बाहर आके 50 लाख खर्चा करके। जब ओके। मैंने आपको पहली बार यूट्यूब में सुना, संजय दीक्षित सर के यूट्यूब में आपने यही वाला स्टेटमेंट शायद मैंने आपको बोलते हुए पहली बार सुना था, और जिसको मैंने भी एमबीए क्लास में काफी बार सुना था। वो एक चीज हो गया। और सेकंड चीज है, पुलवामा अटैक के पहले की बात है, जब आपने ट्वीट किया था, उसको मैंने अपने कोई दोस्त को पूछा था। वो एक मेजर आर्मी में सर्विंग वाला बंदा था, उसने हंस के उड़ा दिया था, बोले ऐसे बकवास बहुत करते हैं। लेकिन तभी जो ये सच हुआ, तभी मैंने लगा कि अरे यार, ये बंदे को सब कुछ पता था तो कुछ किया क्यों नहीं, राइट? अगेन दीज आर ऑल इन पॉजिटिव थिंग्स एक्चुअली। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, सवाल मेरा ये है कि आप आज जो इंडिया का जुडिशियरी सिस्टम है उसको रिफॉर्म करने के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं, या फिर क्या चल रहा है उसके जगह पे? यहाँ पे बहुत एक्टिविज्म हो रहा है। अगेन आप बोल सकते हो कि मेरा जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो शायद ट्विटर ही है, बट अगेन देखिए, इवन इफ दैट इज मैं क्वेश्चन आपका समझ गया, मैं आपको जवाब देता हूं।
जैसा कि मैंने हमेशा बोला है कि मोदी सिस्टम के बाहर जाके कोई काम नहीं करेंगे। अरुण जेटली जी ने कोशिश करी थी कोलिजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए, लेकिन सारी जुडिशरी उनके अगेंस्ट खड़ी हो गई और कोलिजियम सिस्टम को बदलने की ध्यान उन्हें हटाना पड़ा, उन्हें उस लाइन से हटना पड़ा। अब सवाल यह है कि जुडिशरी रिफॉर्म कैसे होगी? जुडिशरी तब रिफॉर्म होगी जब जजेस बाइस नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा नेशनलिस्ट होना चाहिए, उन्हें भाजपा सपोर्टर होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जज का काम किसी पार्टी को सपोर्ट करना नहीं है, किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना नहीं है, लेकिन जब तक जजेस न्यूट्रल नहीं होंगे तब तक ये काम नहीं हो सकता। इस संदर्भ में जो प्रमोशंस किए जा रहे हैं, जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, वो एक बहुत श्रूड स्ट्रेटेजी है। जैसे अभी जो मिनिस्ट्री रिशफल हुई उसमें रविशंकर प्रसाद जी को हटाया गया। बहुत सारे लोग यही मानते हैं रविशंकर प्रसाद को इसलिए हटाया गया क्योंकि ट्विटर फेसबुक से लड़ाई झगड़ा चल रहा था और जो भी हो रहा था, रस्सा कशी, शोइंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑल, वो सब बेकार की बातें हैं। रविशंकर प्रसाद को इसलिए हटाया था कि रमन्ना जो थे वो जब जज बनने वाले थे तो रविशंकर प्रसाद को काम दिया गया था कि ये जज ना बने। रविशंकर प्रसाद थोड़े उतावले हो गए और उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक रमन्ना की बेटियों के 2 प्लॉट आंध्र प्रदेश में ढूंढ के निकाले जो उनकी बेटियों ने ले रखे थे। अब उन्होंने ये चेक नहीं करा कि वो प्लॉट गवर्नमेंट लैंड पे हैं या प्राइवेट लैंड पे हैं, जबकि वो प्राइवेट लैंड पे थे। इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट लैंड पे है। फिर रविशंकर प्रसाद जी ने आपके जगन रेड्डी को बोला, चीफ मिनिस्टर को, कि इन प्लॉटों को लेके इनके खिलाफ एफआईआर कर दो। जब वो एफआईआर हुई तो जस्टिस रमन्ना चिढ़ गए कि आप अब मेरे को ठोकने की बात कर रहे हो, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, जस्टिस रमन्ना के बारे में मैं एक चीज ये बोल दूं, ही इज ए वेरी ऑनेस्ट एंड ओपन गाय। ठीक है, वो औरों की तरह नहीं है और उनके कैरियर में कोई दाग नहीं है जिससे उनको आप ब्लैकमेल कर सको। तो रविशंकर प्रसाद ये चीज देखना भूल गए, जिसकी वजह से जस्टिस रमन्ना को फिर जब केस गया कोर्ट में तो मेरे ख्याल से जज थे महेश श्री, इफ आई एम राइट, उन्होंने कहा इसमें इशू क्या है, ये तो गलत केस है। तो उन्होंने केस को खारिज कर दिया और दोनों उनकी बेटियों का जो केस था जिसमें एफआईआर थी, वो एफआईआर को क्वॉश कर दिया। यानी थप्पड़ किसके ऊपर पड़ा? नरेंद्र मोदी के ऊपर। इस थप्पड़ की वजह से कि आप कानून मंत्री इतने साल से हैं, आप एक जज को मैनेज नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते कौन सीजीआई बनेगा कौन नहीं बनेगा, इसलिए आप बाहर का रास्ता नाप लीजिए। इसलिए उन्हें बाहर का रास्ता नाप के अपना अब सरकार का स्पोक्स पर्सन बना के एक ऐसे स्टेट का गवर्नर बना दिया है जिस स्टेट में गवर्नर का अभी कोई क्रिटिकल रोल है ही नहीं। घर में बैठो, चने खाओ और दारू पियो और मस्त रहो। तो जुडिशियल रिफॉर्म एजुकेशन रिफॉर्म की तरह बहुत लंबा प्रोसेस है। ये एक दिन मैंने फिश टैंक एनालॉजी से, मैंने सबसे सरल भाषा में समझाया कि फिश टैंक एनालॉजी में जब हर तरह की फिशेस होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, तो आप सारी फिश को निकाल कर टैंक को खाली करके फ्रेश वाटर नहीं भर देते, जैसा कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन सोशल मीडिया वांट टू हैपन। इसलिए वहां पर क्या करा जाता है, एक तरफ से पानी निकाला जाता है, दूसरी तरफ से फ्रेश वाटर डाला जाता है और धीरे धीरे, कुछ समय ज्यादा लगता है लेकिन कुछ समय बाद फिश टैंक बिल्कुल साफ हो जाता है। और यही जुडिशरी में भी होगा, यही एजुकेशन सिस्टम में होगा। तो जो भी चीज ये बड़े सिस्टम से और यही ब्यूरोक्रेसी में भी होगा। तो जहां पर ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा है, जहां पर एग्जीक्यूटिव पावर बहुत ज्यादा है, वो अपनी सिस्टम की पावर ज्यादा है, यूनिटी है, वहां पर इतने आसानी से काम नहीं होता है। वहां पर नेचुरल प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ता है चेंजेस लाने के लिए। लेकिन हाँ, अब जैसे 370 था, 370 में हमें इंडिया में कुछ नहीं करना था। 370 में केवल हमें विदेशी मुस्लिम नेशंस को अपनी तरफ करना था, जो 56 नेशन है उनको अपनी तरफ करना था। तो हमने भारत में मुसलमानों को
अपने कंधों पे बिठाला, उनको उद्धार करने की बात करी, और उसमें कोई गलत नहीं है, वो केवल उसलिए भी नहीं करा, वो जरूरत भी है, और उनको जिसको लोग अपीजमेंट समझते हैं वो अपीजमेंट नहीं है, और हमने एक दिन में 370 हटा दी। जो चीज पब्लिक संवेदनाओं की जो स्ट्रैटेजिक होती है वो ऐसे करी जाती है, जिसमें पब्लिक ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, जिसमें पब्लिक के सेंटिमेंट्स होते हैं, जो आस्था के रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं, याद रखिए जो स्ट्रैटेजिक होते हैं उनमें सरकार डिसीजन लेती है, बाद में इंडोर्समेंट सुप्रीम कोर्ट कर देता है, जैसे कि 370 पे हुआ। लेकिन जो आस्था के प्रश्न होते हैं उसमें इंडोर्समेंट पहले सुप्रीम कोर्ट से आती है, ताकि उस पर कोई सवाल ना उठाए, और इसीलिए राम मंदिर के लिए जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आया था। मैंने आपको 2014 में कैसे बताया कि 2019 के बाद पहला काम राम मंदिर होगा? कुछ तो कैलकुलेशन मेरी रही होगी ना, या मेरे को सपना तो आ रहा नहीं रहा था, मैं क्रिस्टल बॉल तो नहीं देखता हूं, एस्ट्रोलॉजर हूं नहीं मैं, तो कुछ तो मेरी इंटेलिजेंस थी, और वो यही था ग्राउंड वर्क की मेरे पास नॉलेज थी। तब मैंने समझ लिया ग्राउंड वर्क मतलब, उसके ऊपर मैंने अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स लगाए, और फिर मैं डिसीजन पे पहुंचा कि राम मंदिर 2019 के बाद आएगा, भले ही सुब्रमण्यम स्वामी कितना कूद लें और कितना ब्लैकमेल कर लें सरकार को, ये सरकार नहीं झुकने वाली, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है, उस समय पे काम होगा। एम आई राइट? एम आई एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड? Okay, sir. He has gone to listener. Okay. So I guess you are right. And sir, आपका जो पुराने tweets हैं, अगर आप हमको share कर देंगे बाद में ना, तो whenever you talk about this, I can put it on the board over here. I can share those tweets. So मैम अभी तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि फोन में नहीं होते, सब लैपटॉप में होते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे टेलीग्राम पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ, वहां से आप पढ़ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, when I will do next session with you, I will have certain tweets and I can post them here, so that people can see what have you posted historically and that has come true. So, Sure ma'am. Yeah, हेमा जी आप अपना बात रखिए, फिर उसके बाद वीकेंड। यस, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। जब से आप ट्विटर पे हो, मैं आपका पीछा ट्विटर पे की हूँ, 2 अकाउंट उड़ा, तब तक मैं साथ थी, फिर गैप पे गई हूँ आपके लिए, ट्विटर पे गई हूँ, अब टेलीग्राम पे भी हूँ। तो बस आप हो जिस पे मैं इतना ट्रस्ट करती हूँ कि मुझे सारा इन्फॉर्मेशन पता होता है। मैं कोशिश करूंगा कि कभी टूटे ना आपका ट्रस्ट, इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं। थैंक यू सर। सर आपने अभी बोला कि जब मुस्लिम के बच्चे पैदा होते हैं तो उनको धर्म की शिक्षा दी जाती है, ठीक है, लेकिन सर यही धर्म की शिक्षा वेद को और हमारे चीजों को पढ़ाने के लिए एक कौन सा धारा लगा हुआ है सर? क्या प्रॉब्लम है कि हमारे महंत ऋषि या फिर हमारे जो पंडित हैं, हमारी जो मंदिर है, वो शिक्षा नहीं दे पाते, और सरकार उन पे 1 रुपया खर्च ना करे वो भी ठीक है सर, उनके मदरसों पे खर्च होता है उनको पढ़ने के लिए, लेकिन एटलीस्ट हमें फ्रीडम तो मिलना चाहिए ना। ये अगर पता है कि प्रॉब्लम का कारण ये है, तो हमें फ्रीडम क्यों नहीं मिल रहा पढ़ाने की? मैं आपकी बात समझ गया। मैंने एक बार लिखा भी था, भारत की कौन से संविधान की कौन सी धारा में ये लिखा हुआ है कि आप वेद, गीता, महाभारत नहीं पढ़ा सकते? भारत में एक धारा दिखा दीजिए। कुछ लोग धारा 25 से लेके 30A की बात करते हैं। धारा 25 और 30A को आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, किसी में नहीं लिखा हुआ है कि आप गीता, महाभारत, रामायण नहीं पढ़ा सकते। और सबसे कमाल की बात है, बड़े पढ़े लिखे लोग धारा 30A की बात करते हैं, हटाओ हटाओ हटाओ। धारा 30A नाम की धारा है ही नहीं, हटाओ कैसे? मैं वही बोल रही हूँ सर, तो फिर मोदी सरकार कानून क्यों नहीं पास करती है, क्यों नहीं करती है? मैंने आपसे क्या बोला, हर चीज कानून से नहीं होगी। सरकार आप मेरे को बताइए, सरकार कानून बनाएगी तो क्या कानून बनाएगी? सरकार ये कानून बनाएगी आपको पढ़ाना है, वो नहीं कर सकती, क्योंकि वो धर्म स्पेसिफिक है, और भारत का संविधान धर्म स्पेसिफिक लॉ बनाने के लिए, बिल बनाने के लिए परमिशन नहीं देता है। क्या सरकार ने आपको रोका है कि ये मत पढ़ो? सरकार ने कभी नहीं रोका है आपको पढ़। प्रॉब्लम हमारे में है मैम, हम बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। 2 प्रॉब्लम है, मैं आपको दोनों प्रॉब्लम समझा रहा हूं। पहली प्रॉब्लम, जब बच्चा पैदा होता है ना सनातन धर्म में, तो हम
क्रिसमस ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो 25 दिसंबर को या 26 दिसंबर या शायद 24 दिसंबर को जब भी स्कूल खुले हुए, जितने आपके एरिया में प्राइमरी स्कूल हो ना, वहां आप चक्कर मार लीजिएगा और फिर एक चक्कर मारिएगा उन्हीं स्कूल का जब कृष्ण जन्माष्टमी होते हैं। आपको समझ में आ जाएगी प्रॉब्लम है कहां। हमें क्रिसमस मनाने में शौक है मैम, हमें गीता महाभारत और कृष्ण को बनाने में शौक नहीं है, हमें रामनवमी बनाने में शौक नहीं है, हमें उसका मतलब बनाने में शौक नहीं है, क्योंकि हम उसको इंफीरियरिटी मानते हैं। दूसरी बात, हम पढ़ाते क्यों नहीं है? सबसे पहला काम जो हम लोगों ने करा, और ये आज से नहीं करा, जब मैं स्कूल में था तब से है, मैंने अपने स्कूल में 8th क्लास में शायद या 8th क्लास से 10th क्लास के बीच में संस्कृत ली थी। और संस्कृत इसलिए ली थी क्योंकि संस्कृत हाईएस्ट स्कोरिंग था मैथ्स की तरह। तो मेरे मैथ्स में भी 100 नंबर आते थे, मेरे संस्कृत में भी 100 नंबर आते थे और मैं छाया रहता था स्कूल में। टीचर हमें 10 श्लोक बता देती थी, ये 10 श्लोक आएंगे, इनका ये अर्थ होता है, तो एक एक श्लोक पढ़ लेना, अर्थ लिख देना, पास हो जाओगे। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता था। हमने संस्कृत सिखाना ही बंद कर दिया बच्चों को। जब संस्कृत ही नहीं पढ़ोगे, आज भी आप देख लीजिए, जब हम बात करते हैं, जब मैं बोलता हूं लोगों को गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो, आप कोई किताब उठा लीजिए, किसी के राइटर की, श्लोक भरे हुए हैं। अब हिंदू समाज में प्रॉब्लम क्या है? हिंदू समाज में प्रॉब्लम यह है कि हम अरेबिक में लिखी हुई फतवा आलमगीर को तो ट्रांसफर करने में अपनी शान समझते हैं, अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, लेकिन हम एक संस्कृत स्कॉलर को पकड़ के और रामायण और महाभारत को सरल शब्दों में, सरल हिंदी में, सरल इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करते। तो सनातन में प्रॉब्लम क्या है कि या तो हम जब धर्म की बात करते हैं पढ़ाने की, या तो हम शुद्ध संस्कृत में पढ़ाते हैं या हम बहुत हाई एंड इंग्लिश में पढ़ाते हैं, और दोनों पढ़ाने में आप मास को रीच नहीं कर पाओगे। जरूरत है, मैंने एक दिन लिखा था कि अगर मेरे पास पैसे होते 60, 70, 80 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए होते, तो मैं 2-4 संस्कृत के स्कॉलर्स को पकड़ता जो कि विद्वान होते और उनको ये बोलता, भाई साहब आप मेरे को हिंदी में रामायण और गीता और महाभारत ट्रांसलेट करके दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद वो जो ट्रांसलेशन देते मेरे को, उस ट्रांसलेशन को मैं रियल लाइफ में कन्वर्ट करता। जैसे उनके 3 तरह के अध्याय बनते। पहला कि मैं बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं स्कूल के, उनको स्टोरी फॉर्म में रामायण महाभारत गीता समझाऊं। फिर युवा वो हैं जो कॉलेज में हैं, जो अपने कैरियर में आगे जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस में घुस रहे हैं, उनके लिए कर्म प्रधान है। तो यहाँ गीता और रामायण और महाभारत में सिखाओ कि भाई धैर्य क्या होता है, कर्म क्या होता है, फल क्या होता है, इन सारे एग्जाम्पल्स को मैनेजमेंट कंसेप्ट के फॉर्म में सिखाओ। और तीसरा वर्जन वो होता जहां मैं सीनियर सिटीजन को कांटेक्ट करता कि वो अपने छोटे बच्चों को, अपने पोते पोती नातियों को, अपने बच्चों को कैसे समझाएं गीता परिवार में क्या होती है, क्योंकि वो परिवार गृहस्थ जीवन का एक सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, जिन्होंने गृहस्थ जीवन को पूरा जिया है। तो गृहस्थ जीवन जीने के बाद रामायण और महाभारत को आप कैसे पढ़ा सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप रामायण महाभारत पढ़ते हैं, मैंने एक बार लिखा था कि गीता को अगर आपको पढ़ना है तो कम से कम 18 बार पढ़ना है। 18 बार पढ़ने के बाद आपको गीता समझ में आनी शुरू होगी, उससे पहले गीता नहीं आएगी। लोग बोलते हैं हम गीता पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ने से कुछ नहीं होगा, गीता का अध्ययन जरूरी है। एक एक ग्रंथ को आपको कम से कम 2-2 साल देना है, तब आपको समझ में आएगा इन ग्रंथ की। और जब आपको ये चीज समझ में आएगी, आप अपने जीवन का लिख के रख लीजिए। अगर आपका ध्येय पैसा है तो मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, तो मेरे आपसे कोई बहस नहीं है। लेकिन अगर आपका ध्येय जीवन का, अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, समाज को, राष्ट्र के प्रति है, तो ये ग्रंथ पढ़ने चाहिए। तो प्रॉब्लम सरकार में नहीं है मैम, प्रॉब्लम हम में है। हम लोग, कितने लोग अपने छोटे बच्चों को मंदिर ले जाते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जितने मल्टी स्टोरी टावर में रहने वाले अर्बन लोग हो गए हैं ना, होली का महत्व नहीं पता। हम पटाखे नहीं जलाना चाहते क्योंकि पटाखे से प्रदूषण फैलता है, पटाखे से आवाज होती है, तो हमारे कुत्ते बिल्ली डर जाते हैं। क्रिसमस में नहीं डरते,
31 दिसंबर को नहीं डरते, दिवाली वाले दिन डर जाते हैं, होली खेलने में पानी की बर्बादी हो जाती है, रक्षाबंधन करने में वो भी एक वो हो जाती है कि बॉयज की महिमा पेट्राची वाली बातें आ जाती हैं। तो बिंदी लगा लो तो आप बैकवर्ड हो जाते हो, बिछिए पहन लो तो आप बैकवर्ड हो जाते हो, मंगलसूत्र पहन लो तो आप बैकवर्ड हो जाते हो। ट्रेंड चल गया, लड़के साड़ी पहन के घूमते हैं, लहंगा पहन के घूमते हैं, ताकि वो बता सकें वो कितने बड़े फेमिनिस्ट सपोर्टर रहे हैं। तो मैम प्रॉब्लम तो हमारे अंदर है ना, सरकार बेचारी क्या करेगी इसमें? बिल्कुल आप सही थैंक यू सर। बस आगे बस इंतजार ही कर सकते हैं कैसे सुधरे। ठीक है सर, थैंक यू। होगा, विश्वास रखिए, होगा, समय आएगा। बेसिकली सर बोल रहे हैं कि टू बी एन अनअपोलोजेटिक हिंदू, यस, ऑलवेज। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल गो टू विकेट, आप अपना क्वेश्चन रखें। थैंक यू मैम एंड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। Sir, I was a bit hurt on the 26th of January this year and whatever happened that day. Sir, do you think that protest in India should be handled in some other way than they are currently handled? Like CA okay, let me ask you how. Sir, I'm not that educated or that knowledgeable like you. This is my question to you, sir. बेटा सुनो, अगर 26 जनवरी को हाई एंड यूज करती सरकार तो पूरी दुनिया में भारत सरकार दमनकारी फास्टेस्ट सरकार डिक्लेयर कर दी जाती। सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन सर। मैं पर्टिकुलर उस डे की बात नहीं कर रहा। आई एम जस्ट सेइंग कि जैसे अभी तक 10 महीने से ये लगातार चल रहा है, यहाँ जो शाहीन बाग का भी था वो भी 6-8 महीने चला, तो इज देयर एनीथिंग मतलब इनको चलने दिया जाए? और आपने एक चीज ध्यान नहीं दी, जो भी 7-8 महीने चला या जो 7-8 महीने फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका आज की डेट में अगर आप आज देखें तो एंड रिजल्ट क्या है? भारत सरकार ने तो किसी को जेल में नहीं डाला, किसी को मारा नहीं, ठीक है, लेकिन प्रोटेस्ट खत्म हो गया। सारी जितना जनता है उसको असलियत पता चल गई ना। वो सारी जनता तो फार्मर तो सबको पता चल गया, फार्मर का प्रोटेस्ट नहीं था, ये आड़तियों का कमीशन एजेंट का प्रोटेस्ट था, ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था। सीए का भी पता चल गया है, वो आईएसआई खालिस्तानी स्पॉन्सर प्रोजेक्ट था, वो उसका मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं, कोई समझदार मुस्लिम उसको मानने से मना नहीं करता। तो आप जब तक इस चीज को, आयुर्वेद में क्या होता है, आयुर्वेद की पद्धति जो होती है ना, ट्रीटमेंट प्रोसेस जो होता है, उसमें आयुर्वेद डिजीज को सप्रेस नहीं करता है, आयुर्वेद डिजीज को उभारता है। आपको फोड़ा हुआ, आपको कोई फुंसी हुई, तो आप जब आयुर्वेद का लेप लगाते हो तो वो और बड़ा हो जाता है, वो और बाहर निकलता है। तो जब वो बाहर निकलता है आप कहते हो यार ये तो बढ़ रहा है मेरा, ये तो ठीक नहीं हो रहा है। अभी मैं एलोपैथिक वाले के पास जाता, 2 कैप्सूल देता, 5 दिन खाता, वहीं सप्रेस हो जाता। लेकिन सप्रेस होने के बाद हमेशा वो चीज रेडी रहती है फिर से निकलने के लिए। जब एक बार बाहर निकल आती है सारी चीज, जो आयुर्वेद की पद्धति है, उसके बाद वो जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो हमेशा के लिए वो परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। आप देखना आज के बाद सीए एनआरसी जैसा कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, आज के बाद फार्मर जैसा कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। आपने फार्मर में जो काम करा, आपने उससे लेबर प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया होने से पहले। तो कई बार जो चीज हमें लगती है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार डंडा नहीं मार रही, सरकार जेल में डाल रही, राकेश टिकैत को हम उठा के क्यों बंद नहीं कर देते, भाई जितना वो बोलेगा उतना हमारे लिए फायदेमंद है। और आप अगर मोदी जी को समझना चाहें, जहां से हमने ये सेशन शुरू करा था, मैंने क्या बोला, मोदी जी को समझना है तो 1980-1970 में जाओ, वहां से समझने